the chief guest of this event, Mr. Amit Latta sir, our honorable principal sir, Dr. Vijay Kumar Patil sir, Dr. Vijay Kumar Wankhede sir, HOD of Basic Sciences and Humanities, Dr. A.K. Gure sir. And I am Khushbu Pisarkar. Today we all gather here for the workshop on the personality development organized by the Godavari College of Engineering, collaborating with the Ladakh Mathematically Academic Jalgaon. I also like to welcome all the teachers and students who came here to attend this workshop. Welcome to all of you. Now I request Dr. Vijay Kumar Patil sir to felicitate the chief guest, Mr. Amit Latta sir. Sir, welcome. Welcome to the Thank you, Nitin Bhode sir to felicitate to our honorable principal Dr. Vijay Kumar Patil sir. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हाँ वन क्रेडिट सर थैंक यू Now I would like to ask Dr. Vijay Kumar Wankhede sir to felicitate Nitin Bhode sir. And also I would like Nitin Bhode sir to felicitate Dr. Vijay Kumar Wankhede sir. First of all, our today's guest, Mr. Amit Latta sir, Director of Ladakh Mathematical Academy, a leading coaching institute of CAT, CMAT, SNAP, etc. and aptitude exam for MBA for last 13 years. Amit sir has expertise in the field of the aptitude training for the maths, data interpretation, logic vocabularies development. The sir is a specialized training in the field in the interview techniques and the group discussion. Amit sir has worked with GLK Board Learning Consumer Research Organization as a research analyst in the year 2007 to 2008. The sir has also worked with the GFK Board Learning Consumer Research Organization as a research analyst in the year 2007 to 2008. From 2004 to 2005, sir has also worked with Milton Plastic as a researcher and development engineer. The sir also worked as the visiting faculties for the maths, data interpretation, data sufficiency and logic with the IMS Pune, Career Forums Pune and the Time Mumbai. There is one welcoming man who doesn't need an introduction and is known all of us for his knowledge and wisdom, and our noble Dr. Vijay Kumar Patil sir to please come on and say some few words. Good morning to all. Say louder. Good morning. Good morning, sir. Very good. Your reply should be energetic, right? Because there is a long path away in front of you to furnish yourself by yourself, and that long path definitely will need much amount of energy. Is it correct? So you must be energetic. I think we are meeting almost after the induction program. Is it? Yes. So frequency of our meeting is less.
So I will urge Dr. Bhode, first year HOD, that he should call me frequently so that I will be with you, first year guys. Right? So you time to time remind sir about it. So dignitaries on the dais for today's program, our invited guest, Mr. Amit G. Ladda from Ladda classes Jalgaon. As the biodata read by anchor, sir is very much enriched with training people, budding engineers for their successful professional lives, right? Our TNP officer, Dr. Vijay Kumar, first year HOD, Dr. Nitin Bhode. I welcome all from my side for today's program. The program is regarding personality development. I also welcome all the distinguished faculties, Professor Lalita, Professor Shraddha, Professor Khushbu, and all non-teaching supporting staff, and above all, you all dear students. You are the closest to me in this campus. So it's a pleasure today to stand here and talk you on this occasion. I will not talk much more, but today's topic is very, very relevant from time point of view. You are the first year student of engineering, and this is the almost first day of your second academic semester, right? So one thing I will tell you, for a professional engineer nowadays, the requirement of his personality, his soft skill, presentation skills, and all other co-curricular activity counts equal to that of his technical knowledge in comparison. What I say, is it clear? If you measure your technical skill in one pan and all other extracurricular, co-curricular self skills of yourself in another pan, both will be equal, and this is globally proved. This is globally proved. So all of you must be very much fluent in your communicative language, whatever it is, as per the need. And mostly in today's global era, mostly English communication language is preferred all over the world. So try to be very easy with that language. If you are not, try to mold yourself in that direction, because you have ample amount of time. Almost for graduation, 3.5 years is with you, right? And one can change oneself almost in a month or 2 months, as per my knowledge, in a task of like this, what I am talking, learning any language. Right, sir? Ladda, sir? Absolutely. Is it correct? 100%. Yes. So be focused on this, and to make you aware regarding all these things, these kinds of programs are there. Okay? So be more than 100% participative in these programs. Don't be here just to sit and watch. It is not your duty. You have to be proactive. You don't be only active, you should be proactive. Proactive means, if faculty tells you one thing, you should be ready to ask next level thing related to that. That is the culture of education, what is being seen at every level. And if you will follow this path, then and then only you will be a successor in competition, then wherever it is, whether it is in Godavari campus or in Jalgaon district or at Maharashtra level, national level, or at international level, you will be winning. Right? So that is what I want to say.
And for all this thing to mold you in coming years up to your graduation, we have full pack of activities in every semester with us. Just 3 days back, we have released a flyer of our college prestigious event, that is Phoenix. Have you heard this Phoenix word before this from Godavari point of view? If you try to understand the history of Godavari, this Phoenix National Technical Events, we are conducting since 20 years back. It was first conducted in year 2006 and now it is 2023. So 17 years back, a legacy this program is having. You must have seen the prizes. So many attractive prizes are there in that event. So try to be a winner for that. If not winner, try to be a competitor, try to be a learner, and try to be a person trying to improve your personal skills. That is my message for you for today. Other activities in these semesters are annual cultural gathering of the college will be there. That will also be one platform to showcase your talent on various skills. Now, today's chief guest, Mr. Amit Lada sir, will be sharing his thought on what are the skills to be developed for self-development. I request to Lada sir, please take your charge and guide us. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you all doing? How are you? पूर होने वाले हैं यार, पहला दिन अगले सेमेस्टर का, correct? But before I start, would like to give sincere thanks to Godavari College for giving me this platform. Sincere thanks to Principal Sir Dr. Vijay Kumar, JTNP, Dr. Vijay Wankhede Sir, HODs, first year HODs, and all the coordinating members, faculties, and so does all of you for listening to me. Right? I hope I make the session worthwhile and enthralling. Is it fine if I, instead of mic, I'll just come and talk to you like this? Do you want me to talk all night, or is it fine if I Just communicate like this. Yes, no? चलेगा? तो कैसा रखना चाहोगे सेशन? ऐसा सेशन जो लगे आप चलो बैठ के वर्क हुआ। हिंदी इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, मराठी हिंदी इंग्लिश, मराठी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और प्योर इंग्लिश। ओके। अभी सर ने बोला था एक मिनट पहले प्रिंसिपल सर ने कि हमें न्यू एरा की स्किल्स हैंडल कर रहे हैं, राइट? जिसमें कौन सा लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इंग्लिश। बट जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर फ्रेंडली, लिटिल मोर एक्सेप्टेबल, इट विल बी हिंदी इंग्लिश। फाइन? चलेगा? जब तो थोड़ा मराठी यूज करूंगा। यस सो? सो दैट्स इट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट? पीडी इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और सर ने बोला कि you not only have to be active, you have to be Riva, you were listening? I never used to listen to my principals actually, right? So like आके खुली रह के सोते थे हम लोग। Yes, no? Yes. Very nice, very enthusiastic. First year? Yes. All of you? Yes. कैसा रखना चाहोगे सेशन? बोरिंग, इंटरैक्टिव, मजा आएगा? ऐसा लगे सर आप बोलते रहो हम सुनते रहेंगे। कैसा चाहिए? वैसा चाहिए सेशन? यस नो? बढ़िया, एक साइड से होगा क्या चीज? आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यस नो? और व्हाट डू यू वांट? अ मोनोटोनस एकदम टिपिकल टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला सेशन या थोड़ा डायनामिक? डायनामिक सेशन चाहिए, राइट? तो डायनामिक सेशन एक साइड से होगा कि दोनों साइड से होगा? दोनों साइड से होगा। यस नो? तो फिर पहला क्वेश्चन आपके लिए सर, सेशन की शुरुआत क्वेश्चन से मत कीजिए।
ऐसा कितने लोगों को बोलने की इच्छा है? कैन आई सी हैंड शो? राइट? आपके नाम, अच्छा आपको लग रहा है? अरे अब ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन ये टेल मी द थर्मोडायनामिक्स रूल्स, राइट? फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? ट्रिपल इंटीग्रेशन के सर M1 M2 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ड्राइंग करके बताओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता. It's just common sense. Yes, no? Yes. Yes, no? Yes. So, I have planned this session in varied way. I just thought of molding it, but I'll just live with my. मैंने एक प्लान बना के चला था कि ऐसे ही चलूँगा. And then when I listened to principal sir, so I said थोड़ा उसको modify कर सकते हैं. So let's see, I'll in between I'll shift my step. सबसे पहले personality development पे session है. Yes, no? Yes. So thank you for such a nice introduction. You repeated the same thing, huh? Next time don't be afraid. ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं. तो आपने सेम सेंटेंस ट्वाइस बोला था अगर आपने नोटिस किया, बट कोई नहीं, अपने ही सब होते हैं, उनको कुछ नहीं आता. क्या डरना होता है? हेलो, अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला फंडा समझने का सामने वाले को कुछ नहीं पता है, राइट? जब सामने वाले को कुछ नहीं पता है तो मैं जो भी बोलूंगा वो क्या रहेगा? सही रहेगा. डरना किस बात? करेक्ट? अगली बार डरना नहीं. ठीक है? डर ये अपने अंदर होता है, बाहर नहीं होता है. तो उसको निकालने का तरीका, सामने वाले को कुछ नहीं आता. सही गलत? पहला टिप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यस नो? बोलो सब मिलके बोलेंगे, सामने वाले को कुछ नहीं आता. डरने का नहीं. बोलो सामने वाले को कुछ नहीं आता. डरने का नहीं. समझ रहा है नहीं समझ रहा है? पर इतनी अंधी बहरी जिंदगी चलाओगे तो गटर में जाने के लिए टाइम नहीं. सो फर्स्ट थिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर मैं एड्रेस करूं तो पहला चीज मुझे लगता है अपना डर ही. अपना डर ही है जो मुझे यहाँ फील हुआ, बहुतों में फील हुआ, आपको फील हुआ डर. सर क्वेश्चन मत पूछिए, कितना डर है. सो पीढ़ी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुधारना है आपको. यस नो? क्या निकालना पड़ेगा? डर निकालना पड़ेगा. यस नो? ओके ठीक है. सो पहला लर्निंग, डर निकालना है तो कैसे क्या करना है? इंटरव्यू वाइवा होता है, बम फेंको. अब उसको आता रहेगा तो वो बोलेगा, करेक्ट? जब तुम फेंकोगे तो डेंजर हो जाएगा. फिर बम फेंकने की भी क्वालिटीज होती हैं. यस नो? चलेगा. अब कितने लेवल के बम बचते हैं, कितने नहीं बचते हैं, वो अलग बॉल गेम है. मैं उस चीज के लिए आज यहाँ नहीं आया. उस पर भी मैं अकल देख सकता हूँ कि इंटरव्यू में बम कैसे फेंकते हैं, वाइवास में बम कैसे फेंकते हैं. और देयर इज अ स्टिल स्टोरी ऑफ इट. चलो आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी. शैल आई? ओके. आई मेरे एजेंडास कुछ अलग थे बट आई एम जस्ट ड्रिफ्टिंग. ओके ठीक है, चलो 2 मिनट्स. आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम VIT पुणे. मैंने मेरा इंजीनियरिंग कहाँ से किया है? आई एम अ फर्स्ट बैच प्रोडक्शन इंजीनियर, 2003 पास आउट. Later on I went on to do my MBA and then 1 year of corporate work after that, and then shift my career to teaching and all. So I'm a teacher by choice. But during my engineering days, वाइवास होते पता है आपको? Yes no? और अपना प्रिपरेशन सबको मालूम है अपन कितना करते हैं. Yes, मैं भी कुछ अलग बिल्कुल, right? But luckily second year third year onwards मैं को-करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में को-करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा इन्वॉल्व था. तो गैदरिंग में मैं इन्वॉल्व था, स्टेज कमेटी सेक्रेटरी था. और मेरे पहले के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत बकवास काम किया. सो मैंने एक बेसिक काम किया कि चेयर्स क्लीन होनी चाहिए, डैश पे सबके डिग्निटीज के नेम प्लेट होने चाहिए, एकदम बेसिक काम किया. मेरे पहले वाले ने उतना भी नहीं किया. समझ रहे नहीं समझ रहे? आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, राइट? VIT, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, राइट? प्रिंसिपल ने HOD के सामने हमारी तारीफ कर दी. This guy has increased the reputation of our college. मैं बोला हेलो. प्रिंसिपल आके मस्त एकदम ज्ञान देके जाते हैं. यस नो? तारीफ भी करके. और उनके शब्द ये लोग सीरियसली ले लेते हैं.
राइट? ऐसा बोर कर रहा हूँ, स्टोरी आगे कंटिन्यू करूँ? यस नो बोलते रहेंगे। हाँ, सो एचओडी के सामने मेरी तारीफ। फिर ऐसा हो गया कि अटेंडेंस में कुछ बेनिफिट मिल जाता था, ठीक है? हाँ, एकदम सेटिंग, फुल सेटिंग। पॉकेट में आ गया यार, come on। नहीं, अब आ गई वाइवा की बात, जो मैं बात कर रहा था। तो सीन ऐसा होता था कि वाइवा में मोस्टली जो सब्जेक्ट के लिए थे एचओडी थे और 2-3 टीचर जो मुझे पहचानते थे, उनके सामने ही प्रिंसिपल तारीफ करते थे। और मीटिंग हो गया, कुछ रहा, कोई भी इवेंट रहा, अमित लड्डा स्टेज संभाले और सेट कर पीडी पर्सनालिटी, यू शुड बी एसोसिएटेड विद वन क्वालिटी, इससे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। नहीं है तो ढूंढो, आता नहीं तो क्रिएट करो। हेलो, हमें 10 क्वालिटीज नहीं चाहिए। काम करो। यस नो? यस। 15 झंडा ऊंचा, 15 अगस्त अमित लड्डा, 26 जनवरी अमित लड्डा, फलाना वो स्टेज का काम। अरे दादा एकदम, तो 2-3 टीचर को बताया कि भाई सर से प्रिंसिपल से मिलते हैं। अब अगर मैंने किसी की कमेंट कर दी प्रिंसिपल के सामने तो उनकी तो लगेंगी, हालांकि अपन कुछ ऐसा करता नहीं है, बट पता नहीं है, म्यूचुअल गेम्स होते हैं, सारे बॉडी लैंग्वेज होते हैं। तो सडनली अपना रिकॉग्निशन बहुत नहीं चल रहा, ठीक है? अब इंटरव्यू की बात है। इंटरव्यू में ऐसा होता था कि एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल में जनरली वही टीचर होते हैं जो अपने को पहचानते हैं, राइट? और अपने काम किया है, एक्स्ट्रा क्या, पढ़ाई का तो छोड़ दे, बाद में की बात है। हेलो नहीं, बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। आई सफर्ड फॉर दैट आल्सो, आई शेयर दैट स्टोरी। तो है इंटरव्यू, वाइवा शुरू में। वाइवा इंटरव्यू तो अलग हो जाता है, प्लेसमेंट इंटरव्यू वाइवास होते हैं, वाइवा बोलते हैं उसको, राइट? टेक्निकल इक्विपमेंट्स हमने 6 सेमेस्टर में 3 महीने में क्या निकाले, उस पे आपका टेक्निकल इनसाइट्स जानने की कोशिश। और मैं अमित लड्डा और मेरा दोस्त मिलिंद है, नाउ इज रनिंग अ वेरी रिप्यूटेड क्लासेस इन अमरावती फॉर यूपीएससी के स्टूडेंट्स हाईएस्ट लेवल पे इंटरव्यू स्टेज और क्लियर हो चुके हैं, सो इज डूइंग एक्सीलेंट अगेन। सो मैं और मिलिंद है, हम दो जनों का इंटरव्यू होता था, साथ में वाइवा होता था। और हम जैसे ही एंटर होते हैं, क्योंकि आगे पीछे रोल नंबर थे, तो इंटरव्यूअर कैसा होता था कि जो इंटरनल टीचर थे और एक्सटर्नल टीचर थे, तो ये जो लड़का है ना, अमित लड्डा, उसने हमारे कॉलेज का नाम बहुत ऊपर उठाया, मेरी तारीफ सारी कर रहे हैं। तो अब क्या होता, मजा क्या थी उसमें, जब वाइवा शुरू होता है तो कैन यू गेस पहला क्वेश्चन किसको पूछा जाएगा? मुझको या मेरे दोस्त? जनरली वाइवास में, इंटरव्यूज में पहले क्वेश्चन कैसे होते हैं? टफ कि इंट्रोडक्टरी होते हैं, थोड़े से ऊपर ऊपरी होते हैं? कैसे होता है? जो रेट पॉइंट्स का कि पहले दूसरे क्वेश्चन से ऊपर ऊपरी होते हैं। हेलो हेलो, आपको चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हो, क्योंकि अदरवाइज आई पुट इट ऑन YouTube also, you can subscribe my channel, you can see that. Yes no? Yes. So पहले दूसरे क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू के इंट्रोडक्टरी होते हैं। So अगर आप इंटरव्यू के लिए प्लेसमेंट कर रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब वाइवा में ले रहे हो तो ऑब्वियसली समझो हम इंजीनियरिंग ग्राफिक का वाइवा दे रहे हैं तो क्या करेंगे? What is engineering? What is 2D modeling? What is 3D modeling? What is AutoCAD? पहले दूसरे क्वेश्चन तो 3 महीने में हर एक को समझ जाओ। क्लास में बैठे तो भी अक्कल आ जाती है अपने को, यस नो? यस, राइट? पहले 2 क्वेश्चन मेरे रहते थे और तीसरे से जो लाइन ऑफ फायर चेंज हो जाती थी, पूरे क्वेश्चन किस पे जाते थे? इंटरव्यू के बाद हर बार मेरा गला पकड़ लड्डा, तेरे कारण मेरी वाट लगती बोले, राइट? सो इसलिए पहली चीज, कोई भी चीज के इंट्रोडक्शंस अच्छे से ध्यान में रखो, राइट? 2-3 चीजें, 4 चीजें, मैंने 4 चीजें अभी बताई आपको, यस नो? यस, राइट? पहली
नहीं नहीं, सामने वाले को कुछ नहीं पता, ये सेकंड लॉजिक है, उसका पहला लॉजिक है डरना नहीं भाई। फिर वो आप किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वाइवा दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, राइट, किसी से बात कर रहे हो, डरना नहीं, उसको कुछ भी बता नहीं, राइट। हम डरते क्या, और मेरे से गलती हो जाएगी, होगी, होने दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको तो नहीं पता है गलती होगी। यस नो, तो डरने का दूसरा पॉइंट, मैंने बोला था नोट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वालिटी इंप्रूव करने अपने, कम से कम एक चीज में तो अपन ने प्रूव करना पड़ता, लोग अपने को इस चीज से पहचाने। यस नो, ये काम है। तो भी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग है अमित सर, किया है अमित सर, क्या लगता है, वाह, ऑटोमेटिक पैसा कमाया चालू हो जाता है। Can I know the branch? Computers and? Okay. सारे हैं? अरे वाह, very nice. So, समझो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और you are now expert in redefining the vehicles. या वो गाड़ी का काम, किसका नाम लिया जाएगा? और वो मेरी गाड़ी का, अरे और प्रिंसिपल की गाड़ी को कुछ गड़बड़ देखता हूँ ना सर, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, कितना टाइम लगेगा एक्सपर्टीज बनाने में? 6 महीने, साल भर? यस नो? और आप, ये जो जनरेशन है आपकी, कंप्यूटर, मैकेनिकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एंड डेटा साइंसेस, राइट, आप सारे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हैं। यस नो? कोई भी चीज सीखने को आपको ज्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है? सच्ची? कम या ज्यादा? बोथ। कैसे? सर अगर कोई सी चीज समझ में आती तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो चीज नहीं आती जल्दी समझ में तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी मैं बोलूं क्या, अब हम ऐसी जनरेशन में आए हुए हैं जहां हर इंफॉर्मेशन ऑन द फिंगर टिप्स अवेलेबल है। यस नो? यस नो? तो पहले से आपका टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कोई भी चीज आई कैन गिव यू नेम इट, हाउ टू रिपेयर अ व्हीकल, 4 व्हीलर की बात कर रहे थे, पता है तेरे को कुछ पता है? जाने का, YouTube पे जाने का। हेलो, ये पहले नहीं था, मेरे टाइम में तो बिल्कुल नहीं था, नया इंटरनेट था, अब इतना एक्सेस भी नहीं मिलता था, माँ बाप फोन भी नहीं देते थे, सबके पास स्मार्टफोन होगा भी ऑलमोस्ट। यस नो? सो कोई भी चीज में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत आसान हो गया है, मेहनत किस चीज पे करनी पड़ती है? एक्सपर्टीज। वे तुम्हें उस चीज से कोई एसोसिएट करे, कंप्यूटर वाले भैया कोडिंग इसकी टॉप क्लास है, सर्वर सिक्योरिटी ये जानता है, AWS ही कैन हैंडल। हेलो, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं यार, वो ट्रैक रेसिंग्स होती है उसमें अपनी गाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, ही कैन रिपेयर एसी, पूरे कॉलेज के जितने एसी रिपेयर मेंटेनेंस पे लोग सर साल का 20,000 सर फीस में कंसेशन क्या हो रहा है? और एक चीज जो पब्लिक मिसअंडरस्टूड करता है पीडी में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब एसी में बैठ के काम करना नहीं होता है। हेलो, किसी वो कंप्यूटर वाले एड़े लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को बहुत बदला हुआ है, राइट? अदरवाइज फॉर रेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स इस ग्राउंड पे काम करना है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको हाथ काले करने की ताकत होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल हो, आपको ग्रीस से हाथ, वायरिंग से, सर्किटरी से चीजें पता होनी चाहिए।
So whatever field is yours, so आप कंप्यूटर इंजीनियर्स हो, अगर आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सर 2 पैंस की बात करते विजय कुमार जी आपके प्रिंसिपल सी, ये 2 पैंस होते हैं टेक्निकल नॉलेज एंड ओपीडी, बट मैं बहुत ज्यादा सबसे पहले टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाऊं, जो बहुतों ने ना वैल्यू कम करके रखी उसकी, इधर बैठे टेक्निकल नॉलेज शुड बी पैरामाउंट। फिर ये जो नई टेक्नोलॉजी है आपको बहुत हेल्प कर देगी, आई मीन, ठीक है। सो टेक्निकली आप साउंड होना चाहिए, थियोरेटिकली आप साउंड होना चाहिए, कि आप जो फील्ड में जा रहे हो उसका थियरी तो ऐसे पकड़ो कि आप देखो तो। और दूसरा पार्ट, सिंस वी आर इनटू एन एरा जहां हम फटाफट सीख सकते हैं चीजों को, यस और नो, हाउ डू यू वांट टू लर्न लाइफ, स्लोली और फास्ट, राइट। सो थियरी पार्ट बहुत फास्ट खत्म करना है, थियरी पार्ट बहुत ज्यादा फास्ट खत्म करना है। So you should have a time for doing lot of practicals, lot of hands on, lot of this, lot of that. Agreed? क्या अच्छा करना पड़ेगा आपको? आपका टेक्निकल नॉलेज, जिसे हम क्या बोलेंगे, थियरी, और किसे पूरा सेमेस्टर लंबा नहीं, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकली साउंड हो तो सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं भैया, वाइवा के 10 आने दो। तो लकीली मेरे को ऐसा हो जाता था कि भाई मैंने थोड़ा गुडविल कमा लिया था काम करके, तो दूसरे तीसरे के बाद तो शिफ्ट ही हो जाता था, और अगला 20 मिनट उसका ही माथा खाता था, मेरे पे आता ही नहीं था, है लॉटरी। यार जिंदगी में हर बार इतना लॉटरी निकलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। और टेक्निकली इंजीनियर्स का के लिए प्रोफेशनल्स बोले जाते हो ना, तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, पहली चीज आपका प्रोफेशनल नॉलेज क्या होना चाहिए, फिर तो आपकी पर्सनालिटी जज होगी आपके नॉलेज से, यस नो, और सेकंड हाउ यू प्रेजेंट। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम आपको सिखाते हैं कि अपने नॉलेज को हम कैसे प्रेजेंट करें, समझ रहे हैं। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप नॉलेज को कब प्रेजेंट कर पाओगे, जब होगा। अभी कोई चीज को प्रेजेंट कब कर पाओगे, जब वो आपके पास, यस नो, नॉलेज ही नहीं है, हेलो, क्या प्रेजेंट कर पाओगे। ब्लफ, ओवर कॉन्फिडेंस लंबे समय तक चलता नहीं। और कॉन्शियस गिल्ट हमें क्यों थी, यार कुछ गलती हो जाती, और टेक्निकली जब जाते और यार इसको मेरे से ज्यादा पता होगा, तो पता है तो तेरे घर बोल के तो आना है, यस नो। कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी में हमारे दिखने चाहिए, बट हम प्रेजेंट कब करेंगे, जब मेरे पास कुछ, राइट। दुश्मन को कब मार सकते हैं, मेरे पास वो बाढ़ हो गया, बकरी मिले रहे तू किधर से, यस नो। बोलने का मतलब है कि अगर आपको एक्सेलेंट पर्सनालिटी चाहिए, आपका टेक्निकल नॉलेज पे आपने सबसे पहले काम करना चाहिए, वो भी स्लो की फास्ट। चलो एक कमिटमेंट लेते थे, लेट्स से एक सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम लीजिए, अभी इस सेमेस्टर में पता है आपको, केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, हां हो गया, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स है, अरे वाह, फिजिक्स के चैप्टर्स के नाम पता है, क्या पूछ रहे हो सर, सुबह वो भी पहले दिन, मैं भी तेरे जैसे था, डोंट वरी। बट अगर आपको जर्नी लॉन्ग करनी है तो जस्ट फॉलो दैट नॉनसेंस, इफ यू वांट टू मेक द जर्नी हैपनिंग यू हैव टू चेंज। क्या चेंज ला सकते हैं, पहली चीज, ये जो मेरे सब्जेक्ट्स है YouTube पे जाने, पहला चैप्टर लेने, एक रात में एक चैप्टर खत्म। कितने चैप्टर्स होते हैं, कुछ आइडिया आपको एक सेमेस्टर में? आज रात में कितने चैप्टर, एक सब्जेक्ट, करेक्ट। कितने सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर में, कितने रातें लगेगी, you have guts to spend 25 nights of the first 25 nights of your semester to finish it. Clear?
That requires discipline. That requires maturity. Best. अब सोचो क्या होगा उसके बाद। पूरा दिन सिर्फ रात को 1-1.5 घंटा वो YouTube देखे बैठना है और सब सारे सब्जेक्ट मिलते हैं अपने को। यस नो? मिलते नहीं मिलते? अब एडवांटेज रात को भैया खाना ना होने का, मैं शेड्यूल भी दे रहा हूँ। कब करना है? खाना ना हुआ कि धिंगाना टाइम पास करते सब लोग। हॉस्टल वाले तो बहुत भयंकर रहते हैं, बेचारे जो घर पे रहते हैं उनका थोड़ा सा मम्मी डैडी के कारण प्रेशर रहता है। बट अगर आप एक टाइम निकाल सको खाने के पहले का या खाने के बाद, जहाँ तुम और तुम्हारी पढ़ाई होगी 1.5 घंटा, कितना? 1.5 घंटा। फिनिश दैट थिंग। फायदा दूसरे दिन क्लास में आओगे, सर टीचिंग कर रहे हो टॉपिक और नहीं तो दिखा किसका ऊपर? यस नो? वो जो टीचर लोग इधर बड़बड़ करते रहते हैं, अपने को आधा समझता आधा नहीं समझता। सुनो, with due respect, मैं भी टीचर हूँ, पर I'm just into their shoes कि हम कितना रिसेप्टिव रहते हैं। तुम मुझे 100 पढ़ाते हो, हमको 12, 10, 15% समझता है। यस नो? तो भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, यस नो? बट अब फर्क क्या हो जाएगा? वो 15% will shift to around 60-70%. उस पहला मेरा बैकग्राउंड चेक हो चुका है चैप्टर। I'll be in a much better position to handle the gravity. I'm in a much better position कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि कुछ टीचर का स्टाइल अलग होता है, but they teach excellent. कुछ टीचर बहुत मेथोडिकल होते हैं, but they are bang on with their knowledge. Still expected. हर टीचर ने एक माहौल क्रिएट, by the way, माहौल क्रिएट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? Yes, no? Yes. तो वो माहौल क्रिएट होना चाहिए, but not necessarily always it is possible for everyone. मेरा तो ऐसा मानना है टीचर should be magician. ऐसा बच्चे की इच्छा होनी चाहिए क्लास में बैठने की, क्या दिखाने वाला है पता नहीं, मेरे को देखना। Yes, no? Yes. Is it reality? क्योंकि आप भी इतने स्मार्ट नहीं हैं। Yes or no? Yes. अगर उन्हें नेक्स्ट लेवल दिखाना है तो फर्स्ट लेवल किसने रेडी करके रखना है? So what is the important first point of, or rather fifth point of personality development जो बहुत important होगा? कितनी रातें सेमेस्टर की? सेमेस्टर की पहली 25 रातें। Period. I'm ready with what? Theory. I'm in a position to talk on a subject. लो ना वाइवा लो ना। और जब टीचर पढ़ाएंगे सबसे पहला फिट किसके दिमाग में बैठेगा? रिविजन्स के टाइम कम हो जाते हैं अपने। दूसरा एडवांटेज हो गया वे 25 दिन खत्म, बचे कितने दिन? सेमेस्टर को बचे ना कुछ दिन बचे। मैथ्स आता है? थोड़ा मैथ आता है? इंजीनियर हो, मैथ्स आना चाहिए, 12वीं पास किया मैंने। हेलो, अच्छा जान दो, उल्टा शुरू करते हैं। सेमेस्टर में कितने महीने होते हैं? बोलने के 6 रहते हैं, एग्जाम में 1 महीना जाता है, उसके बाद का छुट्टी का 1 महीना, उसके पहले छुट्टी का 15 महीना, सॉरी 15 दिन, 15 जग रहे हो, हेलो, गलती पे भी बचाते आना चाहिए खुद को। हेलो, another skills, anyway. Almost आपका सेमेस्टर 3.5 months का रहता है। What is 3.5 months? Can I roughly say 100 days? Yes. 100 days? Yes, no? Yes. 100 days में से कितने दिन चले गए थियरी में? 25 days चले गए। कोई स्मार्ट होगा तो उस 25 दिनों में नोट्स निकाल लो ना, और टीचर के पास जाने का, मैम मेरे चैप्टर रेडी है, इसका फायदा बताता हूँ। हाँ, पहली बात तो टीचर गदगद हो जाता है, ऐसे बच्चे मिलते ही नहीं। देखो सही बोले, तुमको गाली दे रहे हैं। हेलो,
Am I making sense? Yes or no? बट आप जब नोट्स बना के जा रहे हो, इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फायदा, अगले 75 दिन आप बोर होने वाले हो क्योंकि यू नो एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ आप बोर हो, आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, बोर होने का बात कर रहे हो, मैं खुद बोल रहा हूँ। फिर आदमी बोर हुआ ना तो कुछ तो अलग करता है। इंसान अलग कब करता है? जब बोर होता है। यस नो? यस नो? राइट? कुछ तो अलग करे, क्योंकि थियरी वाइज आई नो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई नो व्हाट सर आर टीचिंग, देयर इज समथिंग स्पाइसी हियर लाइफ, कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए, इतना तो मेरे को आ रहा है आगे। इंसान की एक भूख होती है, दे क्रेव फॉर मोर, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं हम लोग। ये आ गया, अब इसके आगे क्या, ये आ गया, इसके आगे क्या, ये आ गया, इसके आगे क्या। पर हम क्या करते हैं, वो पहली स्टेज को इतना बड़ा दे देते हैं कि अगली स्टेज पे पहुंचने की ताकत भी नहीं रखते। थ्योरी नहीं खत्म करते हम। रिमेंबर योर लास्ट सेमेस्टर एग्जाम, कितने लोगों ने 3 बार रिवाइज करके एग्जाम दिए? रेज योर हैंड्स। 2 बार, झूठ बोलना नहीं, हेलो कौन है 2 बार रिवाइज करके? 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया, 2 बार पूरा रिवाइज, मतलब पहली बार पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन, पहली बार रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन, ऐसा? हाँ, मतलब सब प्रैक्टिस। दूर भागना पड़ता है ऐसे बच्चे से। ये सुनो, साइको बोलते हैं 2 बार इंजीनियर का सिलेबस कंप्लीट कर रही है, ये नहीं है। Yes, no? कितने लोग मानते हैं कि हाथ ऊपर करना है, हैंड्स रेज? Yes or no? कोई भी हाथ, अरे कितने लोग लगता है बेवकूफ है, इतना थोड़ी पढ़ते रहते हैं। बोलो हाथ ऊपर करो, हेलो। सब लोग मानते हैं what she is doing is right, then you should follow it. दूसरा आके मेरी जिंदगी को चेंज नहीं करता, हमें हमारी स्किल्स खुद से चेंज करनी होती है। इनका रोल बहुत सेकेंडरी आता है। प्राइमरी, it's we who should change ourselves. Yes or no? Yes. So thank you ma'am for setting such an excellent example for all of us. Every semester, and do follow this, what 25 nights program, what I'm saying. Do it, finish it. I'll tell you the next part of it. Advantage क्या है उसका? Let's make it happen. और ऐसे ही दोस्तों से दोस्ती करो जो अपने को आगे बढ़ने में मदद करे। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? Yes, no? Yes. आ जाते अपने मैथ्स कैलकुलेशन। I'm a maths teacher, so मैथ्स से बहुत अच्छी से मैं चीजें जोड़ता हूँ, right? So 25 दिन हो गए खत्म, रातें हुई है, दिन में क्या करना है तुम्हारा विषय। I mean it. फिर टाइम में बहुत सारी चीजों के लिए, क्योंकि रात को तो मैं पढ़ता हूँ, दिन में जो चाहे वो करो। Yes, no? Yes. So दिन में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जलगांव एक्सप्लोर कर रहे हो, गोदावरी एक्सप्लोर कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने जैसी है ना। पर उस जिस की जब टाइम है जिंदगी में, उसी को उसी समय एक्सप्लोर करो, वो बेटर हो। अभी पढ़ाई के लिए जुड़े हो जिंदगी में, पढ़ाई को एक्सप्लोर करें, डायनामिज्म को एक्सप्लोर करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहला पार्ट कितने लोग मानते हैं थ्योरेटिकली हमें परफेक्ट होना चाहिए? यस नो? कैन आई सी हैंड्स रेज? थ्योरेटिकली अच्छे से यस नो? करते अपन 25 डे का फंडा, यस 25 डेज का प्रोग्राम खत्म कर देने का, कर देने का। आई टेल यू द एडवांटेज ऑफ इट। चले शेयर द एडवांटेज। ऐसा करने से क्या होगा? बचे कितने दिन? ऑब्वियसली सब अब पता है क्या होने वाले सेमेस्टर में। जब तुम्हें पता है मुझे ऐसे मरना है, तो तुम वैसे मरने दोगे खुद को? नहीं। क्या करवाओगे? ट्राई टू एक्सप्लोर। क्या एक्सप्लोर करोगे? चलो कैसे? समझो 75 दिन अब हो गए, मुझे मालूम मेरा सिलेबस रेडी है। क्या करोगे 75 डेज में? कुछ कर दोगे? यस, हाँ, न्यू स्किल डेवलप करेंगे। अरे वाह, एक सेकंड, न्यू स्किल। अब आई कम बैक टू न्यू स्किल। एक तालियां बजाओ, नाम बोलो। तेजस जी ने बोला न्यू स्किल डेवलप करेंगे। यार बहुत बड़ा सवाल है। न्यू स्किल ना, इट्स अ बिग अम्ब्रेला। न्यू, और मुझे आई वांट टू डेवलप माय स्किल्स। जब ये बोलता है ना,
मेरे को 3 जन्म के चक्कर आते हैं। एक बार दो बार नहीं, 3 जन्म के चक्कर आते हैं। अरे स्किल्स इज अ ह्यूज थिंग। बी मोर स्पेसिफिक। सो फिर अगर मुझे आपको न्यू स्किल डेवलप करने हैं तो कुछ आइडिया होगी आपके पास कि नहीं होगी? कोडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर वाले हो? अरे वाह, सी करना चाहोगे? सी हो चुकी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और सी तो ऑलरेडी उसके सिलेबस में था सी। है ना? ठीक है। पर अगर मेरे पास 25 दिन बचे दोस्तों, सॉरी, I definitely improve on my skills, want to improve on my skills। अब 2 टाइप की कैटेगरी आती है। पहला, जो बच्चे भटकना चाहते हैं ट्रैक से, वो 25 दिन में सिलेबस खत्म ही नहीं। सॉरी टू से, जो लोग 25 दिन में अगर खत्म नहीं कर रहे हैं, वो जिंदगी को, ट्रैक को, अपने लाइफ को ट्रैक पे रखना ही नहीं चाहते। पर अगर जो कंप्लीट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास होगा, स्किल्स डेवलप करने की इच्छा होगी। सर कौन से? तो अगर आप कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सीखोगे, यस नो, व्हाट एल्स? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेजेस होंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखोगे। क्यों? सबसे बड़ी गलती टाइम वेस्टेड इज टाइम गॉन। सो हमने हमारी एनर्जी ऐसी ही चीज में डालनी चाहिए जो मेरे को डायरेक्शनली, एक लीनियरली, एक लाइन में मेरे करियर के हिसाब से आगे लेके जाएगा। अगर जिसकी मुझे जरूरत नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज की मेरे को आज जरूरत है क्या? एक रबन का हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हेलो, बिकॉज मैं फ्रेंच सीखने जा रहा हूं, पर मैं उससे बेटर आज अपने आप को एक स्किल आगे ले जाने के लिए, विच इंजीनियर आर यू? कंप्यूटर इंजीनियर है। कैन यू नॉट डू अ कोर्स ऑन AWS? फॉरेन लैंग्वेज से, फॉरेन लैंग्वेज आज काम में आने वाली है कि आगे आने वाली है? तो जो चीज जब लगेगी तब उस पे सोचो, अभी से उस पे प्लान नहीं करना। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? अभी AWS स्किल्स काम का हो सकता है, यस नो? यस नो? प्रोजेक्ट लाइव कैसे करते हैं? हाउ डू यू हैंडल लाइव सर्वर्स? कैन यू नॉट लर्न दैट? बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ना मेरे लिए। एडवांटेज, अगर मैं लाइव सर्वर कैसे हैंडल करते हैं वो सीख गया, जो हम प्रिंसिपल सर की सर इधर थे, आप इधर हो। सर आई कैन हैंडल लाइव सर्वर, Can we have our own website handled by our team? सर बोलेंगे फुकट में हैंडल करके दे रहा है। क्या बोलेंगे सर? यस। बट उसके पहले वो चेक करना पसंद करेंगे सच्ची में कितना अच्छा किया है। 4 प्रोजेक्ट लाइव करके दिखा दो, लाइव है, सर्वर से कनेक्टेड है, ऑल सेट। Advantage, by the time you're second year, third year, you are actually making live projects. फायदा, जब प्लेसमेंट की बात आती है, इन्फोसिस आएगी, विप्रो आएगी, TCS आएगी, I have handled गोदावरी वेबसाइट सर्वर डेटा ऑफ दिस मच। कितने बच्चे हैंडल करते रहेंगे? किसका चांस है? किसकी पर्सनालिटी अच्छी दिख के आ गई? को नहीं करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, हमें जो जरूरत है वही स्किल पे फोकस करना। अननेसेसरी जो चीज पे जरूरत नहीं उस पे एनर्जी डालोगे, एनर्जी लॉस्ट इज नॉट अगेन रिकवर्ड, अंडरस्टैंड। और हमारे पास हर एक के बाद, अगर आपको लगता रहेगा, आप प्लीज बैठ जाएंगे प्लीज, थैंक यू। अगर आपको लगता रहेगा आपके पास लिमिटलेस एनर्जी है, सॉरी, लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। हर एक के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फिर कोई वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वेस्ट करता है, कोई मोबाइल में वेस्ट करता है, कोई सोशल मीडिया पे वेस्ट करता है, कोई पढ़ाई में यूटिलाइज करता है। पहले सारे वेस्ट थे,
लास्ट वाला, you need to choose, do you want to waste or do you want to utilize? Do you want to waste or utilize? क्या करना पसंद करोगे जिंदगी को? टाइम वेस्टेड इज वेस्टेड, टाइम वेस्ट को हमको कायम शिफ्ट करना पड़ता है। That's a conscious effort. अगर मैं जस्ट यूटिलाइज सही ढंग से कर लूं, उस 75 दिन में मैं सर्वर सिक्योरिटी, और आज you're living in the era जहां हर चीज कहां बैठ के मिल रही तुमको। किसने बोला कि भैया मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा तब मुझे थोड़ा बहुत आएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सबसे बड़े फूल आप हो। एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स है। बाय द टाइम योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर खत्म हो रहा है, यू कैन हैंडल लाइव सर्वर्स, यू कैन मेक वेबसाइट, कैन यू नॉट स्टार्ट अर्निंग? टेल मी, ये पर्सनालिटी डेवलप्ड है कि जो हमारे बुकिश कर रहे सर पढ़ा रहे थे फिर हम पढ़ेंगे, वो पर्सनालिटी बुकिश मतलब डेवलप्ड है? कौन सी पर्सनालिटी डेवलप है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है भैया ये काम का आदमी है, ये बेफिजूल आदमी नहीं है। हेलो हेलो, तो आपको अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, इन शॉर्ट गांव की भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज में, आपको वर्थ पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, काम का पर्सनालिटी। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो कौन पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं, नेचुरली वो दिख के आ जाती है। फिर ये जो भी हम कर रहे हो बकवास है, वो सिर्फ मक्खन लगाने की चीज है। यस लगती है, जरूर लगती है, आई गिव यू द एग्जांपल, चलो वो भी जरूरत है, बट मेन क्रक्स ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या स्ट्रांग होना चाहिए? थियरी सबसे बेस्ट होना चाहिए। फॉलो दैट 25 नाइट्स प्रोग्राम। बोलना बहुत आसान है, 25 रातें रोज एक चैप्टर लेके खत्म करना, वीडियो पे वो भी बुकिश तो बाद में, अपनी लाइब्रेरी तो वो अभी आजकल जाते भी नहीं बच्चे लाइब्रेरी में। यस नो, यस नो, गए क्या पिछले सेमेस्टर में? कितने आवाज क्लॉक किए लाइब्रेरी के? अरे मैंने नहीं किए थे मेरे टाइम को, तुम खाते करने वाले हो। अगर कर रहे हो एक्सीलेंट, वो करना चाहिए। सो 25% टाइम में, इनफैक्ट मैं तो उससे भी कम पसंद करूंगा, you should finish your theory. Yes, no? Yes. So you have a 75% time where you can explore. Explore में naturally इंसान क्या बोलेगा? I can do what? Enhance my skills. अब उसके लिए उंगली नहीं पकड़ना है आपको। टेक्नोलॉजी एरा में आपको जो चाहिए आज बैठे-बैठे आपके घर में, आपके रूम में मिलता है, अवेलेबल। Important point, you have to utilize your time, not waste. Correct? I'll give you an example कि हम बोर होते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट ईयर ऑफ माय एमबीए मैंने पुंबा, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुंबा बोलते हैं जिसे, वहां से मैंने एमबीए किया। फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए, आई गॉट फेडेड यार, ये इसके लिए एमबीए नहीं करना था। रोज आ रहे हैं रजिस्टर लेके लाते आ रहे, वो सर ज्ञान बांटता में ज्ञान देते हैं, जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फलाने का दिस इज नॉट समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग। कुछ तो चाहिए यार, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग करना है। आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ आगे बढ़ने की भूख थी। सो सेकंड ईयर में मैं बोला कुछ तो बहुत हो गया भैया, फिर अब बात इनफ इज इनफ, कुछ तो अलग करें। सिस्टम उनका सेट है, कॉलेज वालों का सेट रहता है, इनका सिस्टम सेट रहता है, ये हुआ कि वो हुआ कि वो हुआ कि वो। पर अगर मुझे और मेरी भूख ज्यादा है, आपकी भूख भी ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। यस नो? ये तो कॉलेज जितना दे रहा है उतने भी खुश हो रहा है तो बात अलग है। हेलो, कॉलेज का प्रोग्राम अच्छा है, नॉट से, बट आपकी भूख कितनी है? आपकी भूख कॉलेज के प्रोग्राम जितनी है आपको उतना मिलेगा, उससे ज्यादा है तो यू हैव टू गिव मोर। सो भाई सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। कॉलेज आ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, वही खींची काका चल रहा है, वही सेशन चल रहा है, वापस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बस इनफ इज इनफ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, माय लाइफ स्टोरी। क्या करते हैं? जैसे नो स्किल इज अ वेरी बिग गैमेट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बोला कुछ तो करते हैं, क्या करें क्या करें? एमबीए कर रहे हैं, आईएम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट। आईएम इज
टॉप नॉच इंस्टीट्यूट इन एमबीए? यस नो? तो छोटा मोटा सोचना नहीं, डायरेक्ट सोचना, तो भीड़ के निकालना। जैसे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ करना है, कंपटीशन किसके साथ लगाने की? आईआईटी बॉम्बे के बच्चे आ जा रहे तुम तो तुम कुछ कर रहे हो। हारे जीते सेकेंडरी है, कॉम्पीट किससे करना है अपने को? बेस्ट। यस नो? तो बेस्ट आपके फील्ड में अभी फिलहाल कौन है? आईआईटीएन। आ जाओ भाई, तुम्हारे प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट कर सकते नहीं कर सकते? तुम्हारी स्किल्स मेरी स्किल्स, कर सकते नहीं कर सकते? ये खुद कर पाओगे जब 75% टाइम रहेगा। बोलना मेरे लिए आसान, सुनना आपके लिए आसान, एग्जीक्यूट करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो भूख को नीचे एटीट्यूड होना चाहिए। और तो यार मैंने सिर्फ बोल दिया इंटरव्यू में, फाइनल ईयर के इंटरव्यू में, आई कॉम्पीटेड एट आईआईटी मुंबई's इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। बोलो आपको जलगांव के प्लेसमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो प्रोजेक्ट्स में इतने लोग बैठे रहते, अरे बच्चा अच्छा उठा लेते वही क्यों। स्टार्टिंग जलगांव में एवरेज 3-3.5 रहेगी, यस और नो? वहां पे तुम्हें 7 लाख 8 लाख 10 लाख का स्टार्टिंग मिलेगा। यू शोड एक्स्ट्रा, किसी को भी एक्स्ट्रा पसंद आता है। और एक बिग शॉट लोग ना ढूंढते रहते हैं कौन है भाई कौन है, अच्छे लोगों की हर एक को जरूरत है। कहाँ ढूंढते हैं? इवेंट्स में ढूंढते हैं। इवेंट्स में कब जाओगे? जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा। टाइम कब बचेगा? सब लिंक्ड है लाइफ में। There is a saying, winners don't do different things, they do things differently. सुना है ना? क्या डिफरेंट है? कुछ नहीं। मैं इसने थ्योरी कंप्लीट, मेरा भी कंप्लीट, इसका ये कंप्लीट, मेरा भी कंप्लीट। और व्हाट आई डिड, आई फिनिश इट वेरी फास्ट, आई डिड नॉट वेट इट। और बचे हुए टाइम में आई वर्कड ऑन स्पेसिफिक एरियाज, वो भी कौन से? अंधाधुंधी कुछ भी नहीं करना है, ऐसी चीज पे एनर्जी डालनी जो मेरे को आगे लेके जाएगी मेरे अगले स्टेप। यस और नो? फिर वो पेपर प्रेजेंटेशन हो सकता है, टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन चलेगा, कोई प्रोजेक्ट रहेगा, कोई टेक्निकल स्किल्स होंगी, चलेगा। हेलो, जस्ट कंप्लीट। बराबर स्किल रेडी करने का सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम से, सेकेंड सेम मतलब फोर्थ सेम आपके लाइफ का, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, सेवन सेम, एट सेम, आपको कॉलेज में कम बाहर ही ज्यादा दिखना है। आज इधर का कंपटीशन किया सर, आज उधर का, और सर ने तो बोल दिया आपका टीएडीए। जब मैं तालियां बजाई आपने नोटिस किया क्या? सर ने जब बोला आपने नोटिस किया था? तुम जो कंपटीशन में जाओगे उसका टीएडीए कौन भरेगा? कॉलेज भर रहा है कोई। पाटिल का रहना, खाना पीना जाना, तुमको सिर्फ क्या करना है? चलो शेयर योर नाइस स्टोरी देन कि फायदा क्या होता है। सो भैया और मैं बहुत पसंद आया जब सर ने बोला, मैं पहला इंसान था जिस पे ताली बजा रहा था उस सर की इस बात। तुमको समझा नहीं होगा, सर ने बोला 15% ही ध्यान रखते हैं अपने। हेलो, मेकिंग सेंस? सो दिस इज अ स्टोरी। सेकंड ईयर एमबीए में फेड अप हो गया मेरे कोर्स से, यार ऐसा नहीं एमबीए बनना था मुझे, आई वांट टू बी अ पॉश एमबीए। सो व्हाट डिड आई डू? आई डिसाइडेड कि यार आज में जो भी कंपटीशन होगा ना, हारे तो हारे चलेगा, जाके भिड़ के आना, हारे तो जाके भिड़ के आना। सीरियसली, लिटरली, आई एम नॉट किडिंग। घर में हमारे कंप्यूटर, मेरे पास लैपटॉप नहीं था उस समय, 2005 मेरे पापा ने दिया नहीं। अपन अपने कॉलेज के कंप्यूटर लैब में गए, बैठे, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, एनुअल इवेंट्स ऑफ आईआईएम। उस समय 6 आईआईएम हुआ करते थे, अब तो 20 हो गए। सारे आईआईएम्स के इवेंट खत्म, नीचे के कॉलेजेस खत्म, एक बचा टैमनी मणिपाल, टीएपाई मणिपाल बोल के साउथ में कर्नाटका में कॉलेज है। उडुपी सुना है? उडुपी शेफ्स होते हैं, वो जिस गांव से आते हैं ना उडुपी, उससे नीचे 10 किलोमीटर, एकदम कोस्टल है। कोस्टल लाइन समझते हैं? समंदर किनारे के साइड में वो गांव है। वो गांव की लोक संख्या 5000 थी जब हम गए, उसमें से 4500 बच्चे। वो कॉलेज, वो गांव भी बचा है, पूरा इंस्टीट्यूट बच्चों से, कॉलेज ही है वो, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया, टक टक
आई वांट टू पार्टिसिपेट इनटू योर इवेंट. उस इवेंट में था स्टॉक मार्केट, बिजनेस प्लान, मिस्टर टैपमी, मिसेस टैपमी, दिस दैट, क्विज ऑन द बीच. मैंने सारे प्रोग्राम अप्लाई कर दिए. एक भी प्रोग्राम में करना क्या मालूम नहीं. अब डिसाइड किया उड़ी मामी मारनी और भैग्रवन का डरने का कम मेरे को कुछ नहीं आते. समझ रहा है नहीं समझ रहा है. मैंने अप्लाई कर दिया. 8 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आता है कि ओके यू कैन कम इन अ 5 टीम ऑफ 5. 5 लोगों का टीम लेके आ सकते हो. यू नो व्हाट. और आपका आने का जाने का वह 3 दिन का इवेंट है. 3 दिन का रहने का एसी रूम, सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का हाई टी, रात का डिनर हमारे साइड. कॉलेज डेज में आना जाना वो करवा रहे हैं. हाँ 3 दिन एसी रूम में वो रुकवा रहा है. हाँ खाना पीना सब कुछ उसके है. जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. जो इससे मैंने बोला यार ऐसा कुछ मेरे को ऑफर आया है, मेरे को पता होने से पहले हमारी टीम बन गई. मैंने सिर्फ शेयर किया मैं आऊंगा और लोग इतने चालू होते हैं. तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है. मेरे को चूज करने का भी मौका नहीं. मैंने इसको ले जाऊँ साथ. मेरे को समझने से पहले टीम बन चुकी थी. जब मैं मुड़ के देखता हूँ उस इवेंट के लिए तो हमारा कितना गधा था मैं. Anyways, you learn life lessons. So we had a group of 5, and that event was almost December में था, 1.5 महीने बाद. So हमने हमारे टिकट भेजे, उन्होंने हमारा टिकट का कॉम्पेंसेट करवा दिया. और मैं तो कॉम्पेंसेट उधर करवाया था. हमने सिर्फ हमारे टिकट से तुम लेके आओ, हम कॉम्पेंसेट करवा देंगे ऐसा. फिर बैठ गए. तो पूना से मंगला एक्सप्रेस बोल के नहीं, मंगला नहीं कौन सा था, तो पनवेल होके ऐसा जाती है. तो हम पहुंचे रात को 1:30 बजे पणजी. पहली बार लाइफ में ऐसा फील हुआ हमारे लिए ऐसे लोग लेके खड़े हैं. कुंभा पुणे यूनिवर्सिटी. रात को 1:30 बजे आदमी स्टूडेंट, पूरा इवेंट स्टूडेंट है. हमें ताकत बहुत है दोस्त. सही ढंग से हमने अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं की. वो लेके खड़ा है. ऐसा प्राउड होता है ना अपने लिए कोई लेके आ रहा है. वेलकम पुंबा ऐसा बोर्ड लेके खड़ा है. सो अगली बार कोई गेस्ट आता है वेलकम बैनर, वेलकम. किसको भी अच्छा लगेगा. ये सुनो ये सुनो कितना एफर्ट लगता है. फिर वहां टैक्सी खड़ी है. टैक्सी हमको लेने आ रही है यार, बहुत बड़ी बात है. फ्री में अपन जा रहे हैं. मस्त रूम में गए. फिर सुबह इवेंट चालू. नाश्ता कर रहे चाटते बैठा हुए. आज भी ऐसे फील होता है राइट. सो नाश्ता हुआ. पहला इवेंट था स्टॉक मार्केट. वी पार्टिसिपेट. सो वैसे जा रहे और ऐसे जा रहे हैं, कुछ खाली था. हम गए. 2 घंटे का इवेंट था स्टॉक मार्केट. 3 राउंड का गेम था. कैसे खेलते कुछ नहीं पता. 3 राउंड दिल से हारे. रिटर्न आए. फिर लंच का टाइम हो गया. पहले फिर लंच हुआ. फिर हमारे तो अगले इवेंट इधर. मेरे को आज भी आते हैं. मैं जा रहा था वहाँ खाली था. अगले इवेंट के पहले सारा सिस्टम सेट. I was awe with the students' management abilities. कि कितने स्मार्टली चीजों को मैनेज किया. लिमिटेड स्पेस थी उनके पास. बहुत बड़ा ऐसा कैंपस नहीं था उस समय. तो जो टैपमी मणिपाल का जो एमबीए डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. तो उतने से में उन्होंने 25 इवेंट निकालवाए थे. और यहाँ जा रहे हो तो कुछ नहीं है सेटअप. 2 घंटे बाद यू हैव अ सेटअप देयर. नेक्स्ट इवेंट वहाँ रहेगा 3 घंटे बाद, क्योंकि खाने का 1 घंटे का ब्रेक. अगला हाँ अगला एडमेट शो पूरी तरह राइट. फिर वो स्टैंड अप कॉमेडी का भी था उस समय 2005 की बात कर रहा हूँ. किसको कॉमेडी आती है. दिल का तो वो जितने इवेंट में पार्टिसिपेट किए पूरे दिल से आया राइट. कौन कौन कॉम्पीट कर रहा था. केजे समैया मुंबई कर रहा था. एमडीआई गुड़गांव कर रहा था. साउथ के कुछ कॉलेज थे. पैन इंडिया से लोग आए.
रात को उन्होंने कैंप फायर रखा था। कैंप फायर क्या होता है? कैंप फायर ऐसे आग लगाते हैं, राइट? बच्चे लड़के अपन दिखाना करते हैं, दिखाना मतलब कंट्रोल कर रहा है, हेलो गाने गाना, ये करना, गिटार, है ना? ये सुनो, हम बस सब मजे कर रहे हैं, हम 5 जन उतार के बैठे। और एक बड़ा लाइफ लेसन मैंने सीखा, जो हार है ना उसको ड्रैग मत करो, गेट ओवर। हम निकल नहीं पाए, पांचों के पांचों इवेंट सब लोग ऐसे डाउन थे, हम पब्लिक मस्ती कर रहा, लड़के लड़कियां क्या गाने गा रहे, कोई गिटार बजा रहा, एक लड़का आया सी रॉकेल बॉटल हाथ में मशाल, हम देख रहे यार, जब मुड़ के देखा क्या बेवकूफियां करते हैं हम अपनी जिंदगी में। तो एक बड़ा लेसन, हार है ना, हार है, आइडेंटिफाई, जब आपको उसको सुधारना है तो फिर क्यों हार है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर कॉन्शियसली एफर्ट डालना होता है। यस नो, यस नो, पर हम डाउन थे, हम दे एवरीवेयर एंजॉयड, 2-2.5 घंटा चला मस्त, एंड दूसरे दिन पूरी तरह, तीसरे दिन तो तुमको पता ही है। फिर लास्ट टाइम का एक इवेंट था क्विज ऑन द बीच, इंडिया का सेकंड बेस्ट क्विज मास्टर है, सेकंड बेस्ट क्विज मास्टर। तो उस समय डेरेक ओब्रायन वो फर्स्ट था, सेकंड बेस्ट था, आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। और क्विज ऑन द बीच क्या है, तो हमें मणिपाल कॉलेज से बीच पे पहले गाड़ी से लेके गए, वहां पे 2 घंटा बीच पे खेलना है, बीच वॉलीबॉल ये वो, और ऐसे 2-3 लड़कियां थी, उन्होंने स्पॉन्सर्स लाए थे, तो एक के पास ऐसे थैला था, लीवाइस के प्रोडक्ट ऐसे बांट रही थी, किसी को जीन्स, किसी को टी-शर्ट, किसी को ये, मैं भुक्कड़ जैसे कर, मैं मेरे को भी चाहिए शर्म नहीं आ रहा, समझ रहा नहीं, तो आई गॉट अ लीवाइस कैप, 600-700 रुपए की उस समय की प्राइसिंग रेट। मैं आया तो सब मेरे दोस्त की इसने भी हाथ नहीं लगाने राइट, दोस्त अपन मस्ती ऐसे करते हैं, मैं प्रीमियम मिला तो चल रहे आ रहे राइट, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अपने में का मस्ती तो रहना है, बट कॉन्शियस एफर्ट भी चलने चाहिए कि कैसे आगे बढ़ूं, दैट मेक्स योर पर्सनालिटी। यू नो व्हाट, फिर क्विज मास्टर आया, पहले वो गेम 2-2.5 घंटे का चला, फिर क्विज जैसे शाम हो गई, लाइटिंग आ गई, और क्या सेटअप, ऑसम। कम से कम उस समय उस पूरे इवेंट का बजट रहेगा 80 लाख, सारा स्पॉन्सरशिप बच्चों ने खींच के लाया, सारा इवेंट मैनेज बच्चों ने किया। यार तुम 80 लाख का इवेंट मैनेज कर रहे हो, काहे की तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखने की जरूरत है, यस नो, यस नो, ओ यार मैं तो और था, मतलब मेरे लाइफ में बच्चों की ताकत और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कितनी ऑसम हो सकती है, वाज अ फैब एग्जांपल। क्विज ऑन द बीच 3 राउंड का इवेंट था, पहले में 25 क्वेश्चन का सीट, सबको ऐसे सर्किल के सारे टेबल पे बैठे चेयर पे, सबको दिए। 5वें मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 5वें मिनट बाद मैंने ऊपर देखा तो मेरे दोस्त के पास देखा, और वो भी मेरे पास देख रहा समझे, समझे क्या भाई, उसको भी कुछ नहीं आ रहा था, मेरे को भी कुछ नहीं आ रहा था। जो फाइनल में डायस पे 3rd राउंड के बाद पहुंचे थे ना, वो क्विज मास्टर ऐसे 4 इमेज देखा था, ठक 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 ठक, और इधर बजर उधर, ये BMW का न्यूयॉर्क का हेड ऑफिस है, उनका एक नया लोगो है, ये इनका नाम ये है, जो उनका डायरेक्टर है, अभी नया मार्केटिंग मतलब डायरेक्टर बना है, और हमसे तो कहो कि क्या जिंदगी भाग रही है रिटर्न जर्नी में। और हम जब जा रहे थे तो हम बोला अरे अपन तो फाड़ के आएंगे सबको, कोई नहीं टिकाएंगे, क्या इंडिया क्या कीजिएगा, क्या है, अड़ा अपने से बेस्ट कोई नहीं। और रिटर्न जाते समय एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बुरी तरह आ रहे थे, और मैं बहुत कुछ लेके जा रहा था, दुनिया को पूरी तरह देखना है, बड़े लेवल की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, हार जीत, लोग किस लेवल पे अपने आप को तैयारी करते हैं, अगर आप जाओगे नहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बी अ पार्टिसिपेंट इन
एक्सेलेंट बिग इवेंट इंडिया भी बहुत बेहतर कंपटीशन बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, फॉरेन लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं, बहुत है अपने देश में, तुम कम नहीं हो। यस नो Yes. और इतना सीखा यार, बिजनेस प्लान, स्टॉक मार्केट गेम क्या होता है पता चला, जिसने बनाया उसने कोडिंग तो की होंगी, क्या कोडर होते हैं यार, क्या टैलेंट है, क्या मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लेके आना, एंजॉय करना काम के साथ। Still feeling goosebumps, right? I'm living that time again. अरे तब समझा साला यार जिंदगी जीने का, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट कि आए हाथ हलाते रहते हैं, लेक्चर सीखा चले गए, सॉरी, एंड यू आर अ डोंकी इंजीनियर। और हम क्रिटिसाइज किसको करते हैं, कॉलेज को, टीचर्स को, कि यार इनके कारण, अरे भैया तुमने एफर्ट नहीं डाले। सो लेट्स मेक आवर पर्सनालिटी बेटर, शैल वी? कैसे बनाएंगे? पहला रूल, डरना किसी के बाप से नहीं, बड़ा उसको भी कुछ नहीं आता। सो गिव अ कॉन्फिडेंटली इंट्रोडक्शन चाहिए, कोई भी गेस्ट आएगा उसका। दूसरा, इवेंट अच्छे से मैनेज करो, कोई भी छोटा इवेंट है, सर कैन वी डू वेलकम दिस वन, गेट इन आईज ऑफ प्रिंसिपल्स, एचओडीज, क्योंकि मान में कॉलेज के पास कुछ भी अच्छी चीज आई ना तो सब बच्चों को नहीं बांटी जाती, जो नजदीक वाले होते हैं ना, और ये इवेंट है, जाता क्या यस नो टीचर के चाहते थे, तो सिर्फ काम करके नहीं, थियोरेटिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज भी, यस नो, इसे जीना बोलेंगे इंजीनियरिंग डेज। तो जैसे सर ने बोला ये लीगसी है तुम्हारे इवेंट की, कुछ इवेंट आ रहा है आपका, सर अभी बता रहे थे, यस नो, नेक्स्ट लेवल, सेकेंड ईयर की वाट लगा दो, थर्ड ईयर वालों की वाट लगा दो, फाइनल वालों की वाट लगा दो, उनको औकात दिखा दो बेटा, हम फर्स्ट ईयर वाले तुमसे कर सकते कि नहीं कर सकते, यस नो। हम डोंकी इंजीनियर्स बनने नहीं आए, दैट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस नो। लेट्स मेक आवर थ्योरी फिनिश फास्ट, थ्योरी में भी पीछे नहीं, प्रैक्टिकली टाइम रहेगा तो 10 चीजें कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं, खा डालना है, यस नो। नेक्स्ट थिंग, अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बाय द वे कैसा लग रहा है सेशन? मेरे इंजीनियरिंग तक मैंने बहुत कॉन्शियसली मेरी स्किल्स को डेवलप किया, रिपीट, मेरे इंजीनियरिंग तक लड़कियों से बात नहीं करता था, इतना सोता, इंग्लिश का भरभर के डर, बहुत सारी वीकनेसेस मैंने कॉन्शियसली, तुम्हें लग रहा भी है क्या मैं मेरे इंजीनियरिंग में ऐसे डरा से मासा आदमी रहूंगा? हाँ, मराठी आ जा रहा है, किसके बाप का नहीं मैं, हेलो ठीक है, बट आई लॉस्ट जीएसशिप, जनरल सेक्रेटरी, पता है आपको क्या होता है? फाइनल ईयर में कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाला एक बच्चा होता है, अपने यहाँ होता है वैसे कुछ, जीएस होता है कॉलेज का, यस नो। तो जीएस के लिए भाई अपना वर्ड ऐसा था, अपने को प्रिंसिपल पहचानता था, यस, एचओडी तारीफ करता था, वाइवा में अपन सेटिंग फुल मारते थे, यस नो, 20% अटेंडेंस पे कॉलेज चलता था मेरा, VIT is one of the strictest college for attendance, yes no, मेरे को सिर्फ ग्रुप बोल मिलते थे, काम प्रिंसिपल के काम, राइट। बट आपको थियरी, मैंने गलती क्या की, मैंने थियरी कॉम्प्रोमाइज कर दी, उसके भुगतान मुझे बाद में कैसे। So what change you need to do? Finish the theory, show to the teacher, sir allow me कि मेरे को ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को कंफर्मेशन आ गया। कौन सा टीचर मना करेगा? कौन सा टीचर मना करेगा? जब आप पढ़ाई दिखा दे रहे हो, पार्टिसिपेशन दिखा दे रहे हो, कोई भी टीचर मना नहीं करेगा। अटेंडेंस का इशू सेटल, थियरी का इशू सेटल, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बाय द टाइम आप पास आउट होगे ना, आप जॉब का सोचने नहीं वाले। ये बिजनेस है, बिजनेस कर, यस नो। जॉब इज अ मिथ, अंडरस्टैंड दोस्तों, जॉब इज अ, क्या क्या लगता है आपको इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद क्या क्या पैसा मिलने वाला है? सोचा है सब कुछ?
सोचना पड़ेगा। अगर आपको आगे जिंदगी में बढ़ना है, यू नीड टू थिंक, प्लान एंड ग्रो। थिंक, प्लान, और अंधी मेरी कुछ भी नहीं करना है। जो भी मेरा अगला एक्शन होगा वो एक विचारों से ही आएगा कि हाँ मुझे ये क्यों करना है। इसके 3 रीजंस हैं। जो भी स्टेप्स मैं आगे की ले रहा हूं, आई शुड हैव 3 रीजंस। ये सुनो, मैं यहाँ आया हूं ना तुम्हारे लिए नहीं आया, मेरे रीजन से कुछ ब्रोशर मिला होगा तुम धंधा मेरा फायदा, तुम्हारा फायदा, दोनों का फायदा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। यस नो? हेलो हेलो, मैं नया टेक चालू कर रहा हूं। मेरा एजुकेशन बिकम अ मास्टर ऑफ 500 वो क्या है, राइट? 1000 रुपीस का 700 रुपीस का प्रोडक्ट है। 1 रुपया डे फॉर फ्लैश कार्ड, 1 रुपया डे फॉर वीडियो लर्निंग, 1 रुपया डे फॉर फ्लैश कार्ड, 1 रुपया डे फॉर 700 रुपीस का प्रोडक्ट आएगा ऑलमोस्ट। यस नो? राइट? थोड़ा मैथ सिखा रहा हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ सिखा रहा हूँ। हालांकि प्रोडक्ट वोकैबुलरी, हाँ प्रोडक्ट ऑसम बना है। 1 रुपया दिन का वोकैब का 1 रुपया। तो मुझे बताओ, अगर इंडिया में वोकैबुलरी सुधारने वाले कितने बच्चों तक पहुंच जा सकता हूं मैं अगर सही ढंग से मार्केटिंग करूं तो? कितने बच्चे तक जा सकता हूं साल भर में? एनी गेसिंग? इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़। कितने लोग मेरा प्रोडक्ट ले लेंगे? अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपको प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊंगा, आपको समझ जाएगा। कितने लोग ले लेंगे पूरे इंडिया में से तो सही ढंग से मार्केटिंग? हाँ 60% मतलब कितना? 60% 140 का पता है कितना होता है? 84 करोड़। ऐसा होगा तो मैं चांद में रहूंगा, जलगांव इंडिया में रहूंगा कि नहीं? तो प्रैक्टिकल अवेयरनेस भी कुछ नहीं है। कब आएगा? रीड करोगे क्या चलता है जिंदगी में। अरे बड़ी सी बड़ी हिंदुस्तान एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कंपनी का मार्केट शेयर बड़े बड़े बेस्ट प्रोडक्ट का भी 12% होता है। उस पे भी वो लाखों करोड़ों करोड़ की कंपनी बन जाती है। तो तू 60% बोलेगा तो मैं तो चांद पे घर बनाऊंगा मैं। हेलो, 60% इज हवा में बात है, बट अच्छा लगा कॉन्फिडेंटली बोला। पहला बोलना, दूसरा उसमें सेंस लाना, ये 2 स्टेज पे जाओ, ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी स्मार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज, बोलोगे ही नहीं ना तो सही क्या कर रहे हो गलत क्या कर रहे हो इसका पता ही। और एक बात बताओ, क्या और पर्सनालिटी को जल्दी सुधारना है तो इजीएस्ट वे टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी, नॉलेज, स्किल्स इज मेक मिस्टेक एंड लर्न। हम मिस्टेक करना ही नहीं पसंद करते हैं तो लर्न करते नहीं। मिस्टेक कब होगी? जब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा कि भाई कोई गेस्ट आ रहा है कि सर आई थिंक आई डू अ वेलकम राउंड, माय रिस्पांसिबिलिटी, आई डू दिस। वेलकम का एक छोटा सा स्टिकर में चिपकाता हूं प्रिंट आउट करके, मेरे को दो परमिशन सर। अगली बार कोई भी आए, 2 बार का, तीसरी बार नाम किसका निकलता सर के मुंह पे, वो हाई-फाई की चीजें चेंज करना 3 बार करते हो गया, अरे सब एक्सेप्ट करते हैं, अरे बेटा ऐसा नहीं, अगली बार ऐसा कर, ओके सर। वो लोग ही सुधारते अपने को, मैं बता रहा हूँ। हमको सिर्फ सुधरने की मानसिकता रखनी चाहिए, पर वो करने के लिए पहले करना चाहिए बहुत सारा। उसमें से 10 गलतियां होंगी, एक्सेप्ट करो, जो सुधार सके सुधारो, आगे बढ़ जाते। सो यहाँ आते मेरे प्रोडक्ट पे, 700 रुपए का प्रोडक्ट रहेगा, एक सब्सक्रिप्शन, राइट? तो बोलिए कितने लोग लेंगे तुम्हारे हिसाब से? अभी 60% 84 करोड़ तो गलत हो गया था। और बोलो 10% मतलब 1.5 करोड़, वो भी गलत है। नेक्स्ट 1% 1.4 करोड़, राइट? वो भी रॉन्ग है। अबे 1.4 करोड़ लाया, 700, मैं 700 करोड़ का मालिक हो गया। हेलो, मजाक लग रही है तुमको? तुम सामने आऊंगा भी नहीं, देख रहे बनता। हेलो, सही है गलत है? तो तुम्हारी सोच हवा में है दोस्तों। 1% भी नहीं चाहिए मेरे को। 0.1% 14 लाख, 14 लाख इंटू 700, ये गणित नहीं आता सर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो, थोड़ा बहुत मैथ
14 लाख इंटू 700 98 व्हाट लैक्स करोड़ 98 करोड़ साल के बहुत हो गया अपने को आईना डूलिंग तो जाने का कॉलेज में जाने का सेमिनार देके आने का लोगों को मोटिवेट करने का प्रोडक्ट ऑसम है प्रोडक्ट पे काम करना अपना है क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे पब्लिक लेता है यस नो यस नो और क्या चाहिए और ये कब होगा जब मैं मेरे नॉर्मल से मैं नॉर्मल करूंगा रूटीन करूंगा कि रूटीन से एक्स्ट्रा दूंगा तो नेट समरी अभी तक अपने क्या क्या सीखा पहले तो किसी पे अपने लोग से नहीं रहना रिस्पेक्ट होना चाहिए डर क्या होना चाहिए फैकल्टी का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए डर और कान खुले जो अच्छे सजेशन से लेना जो नॉनसेंस लगे अपन करती है जैसे भी यस और नो नेक्स्ट 25% टाइम में अपना क्या खत्म हो जाना चाहिए वो कॉन्शियस है अदरवाइज आपकी जो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना वो भोगने वाला कुत्ता फील होगा जो भोगता है बट काटता नहीं सिर्फ आप गैस ओवर कॉन्फिडेंस हो बाकी अंदर खाली हो ना ये मेरा काम बोलेगा तो थ्योरी खत्म होगा यस नो 75% टाइम में इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंटेशंस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस एक्सपोज इवेंट्स कितने लोग कर पाएंगे इसमें से कैन यू गेस कितने लोगों की इच्छा है ऐसा जीने की कैन आई सी हैंड्स रेज यस नो पर एक बात बताऊं तुम सब मंद हो डू यू वांट मी टू प्रूव दिस सारे 12 पास किए एक 10 मिनट का गेम खेलते हैं शैल वी कोई है एक क्वालिटी थी मैम आप उसको माउस यूज करके अगले स्लाइड पे जाएंगे जस्ट टू शो यू आपके फंडामेंटल्स कितने कठिन हैं राइट रियलिटी चेक है अब मैं रियलिटी दिखाना चाहूंगा आपको गो नेक्स्ट हाँ करेक्ट गो नेक्स्ट हाँ बस और क्लिक करेंगे करेक्ट राइट पहली चीज और एक चीज तो सिखा रहा अगली बार पीपीटी करवाते हैं इनसे पीपीटी करवाते हैं राइट पीपीटी पॉस्ट चाहिए नो क्लटर प्रेजेंटेशंस आपके ऑसम चाहिए जस्ट गो बैक शो देम द स्लाइड्स कैसे बनाया जरा देखो लिमिटेड चीजें होनी चाहिए बाकी चीजें दिमाग में होनी चाहिए गो बैक से आपके पीपीटी ऑसम लिमिटेड चीजें जितना मुझे पॉइंट बोलना है उतना ही पॉइंट रहेगा एक पीपीटी एक स्लाइड एक पॉइंट हम इतना गंदे तरीके से ना स्ट्रिक्टली पीपीटी प्रेजेंटेशंस का अगर आपको चाहिए तो आगे एक सेशन करवा दूंगा तो बहुत सिंपल फंडे होते हैं पता ही नहीं होता इसलिए हम डोंकीश और थोड़ा आलस अपना भी होता है ठीक है तो प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑसम चाहिए यस नो इट्स योर पार्ट आप मुझे देख रहे हो मेरे पीपीटी को देख रहे हो और आदमी भी अच्छा है स्टाइल भी अच्छा है क्या इंप्रेशन छोड़ के जा रहा हूँ अच्छा बुरा अच्छा अगर मैं बोल दूं कि यार इधर बैठे 100 बच्चे हैं मेरा प्रोडक्ट ले लो आज 50 बच्चों ने भी प्रोडक्ट ले लिया 700 × 50 मैथ्स ही कमजोर है साला तुम्हारा है 35 एक दिन का 35,000 कमा लेना दोस्तों जो शायद तुम इंजीनियरिंग के बाद आपका पहला सैलरी महीने भर का सोच रहे हो वो भी 2 घंटे के सेशन में वो भी स्टाइल मार के एटीट्यूड दिखा के हेलो काम किए एफर्ट्स डाले हर चीज को सुधारने के 25% में थ्योरी खत्म की है 75 में अब टाइम है तो भाई तुमसे मिलो इंटरेक्ट करो एसएसबीटी जाएंगे गवर्नमेंट जाएंगे नो शिरपुर का कॉलेज जाएंगे इधर शेगांव का कॉलेज जाएंगे प्लान एंड इन्फॉर्म लोगों से कनेक्ट करना किसके लिए भाग रहा हूँ सबसे पहले किसके लिए भागना है बी सेल्फिश फॉर सेल्फ ग्रोथ और वो कॉन्शियस एफर्ट से आता है वो कौन से एफर्ट से आता है क्योंकि
क्योंकि सिस्टम का एक्सपेक्टेशन बहुत हेवी है। आपको उस लेवल पे टिकना है ना, एफर्ट्स ज्यादा करना है। ओके, यस नो? सो लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स सी योर मैथ्स कितनी अच्छी है। यस नो? आई विल गो टू दैट। तो आपका पीपीटीज बहुत सिंपल सोबर रखने चाहिए आपने, बट बड़े बड़े बोल्ड। लुक एट दिस, मुझे अरिथमेटिक का फंडा देना था, अरिथमेटिक बाजू में है, और एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल था, बट आई थिंक आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज फर्स्ट पार्ट आई टुक लिटिल लॉन्गर टाइम टू, राइट? सो एक इफेक्ट किया है तो पीपीटीज चलाते हैं, राइट? सो बिकम एन एक्सपर्ट इन एक्सेल, जाने का यूट्यूब। मैं लिटरली परसों एक इवेंट, मेरा एक कैंपेन रन कर रहा हूँ, मार्केटिंग लगा नहीं करता था आज तक, पर अब मेरा नया प्रोडक्ट आया, मुझे मार्केटिंग करना है, मैं सीख रहा हूँ। लर्निंग शुड बी ऑलवेज, यस नो? लर्निंग शुड बी। तो मेरे को ना एक हैक मिला कि व्हाट्सएप पे मैसेज, ऑटो मैसेज कैसे भेजते हैं, उसका फंडा पता चला। उसके लिए मुझे ना नंबर को जोड़ना था 91 के साथ, तो आपका मोबाइल नंबर और 91 जोड़ना है, मेरे को नहीं आ रहा। YouTube, how to join two numbers in Excel, Zoom, 1 मिनट में सीख गए। Yes no? ये तो जानता है, ये था मेरे साथ बैठा। You are in an era where you can reduce the time of your self growth, खुद के growth का टाइम बहुत कम कर सकते हो, so that you will have a time to practically implement what you know. Hello? अगर डोंकी तरीके से करोगे तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी, दूसरा कोई आके चेंज नहीं हो। मेरे जिंदगी में तुम्हारे ग्रोथ से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? किसी के नहीं, इनके नहीं। हर एक के जिंदगी में खुद के ग्रोथ से चेंज होता है। सो आई ग्रो। मैंने टेक्नोलॉजी को अभी मैं इतना नहीं भाव देता था, पर देना शुरू किया जब से मेरा प्रोडक्ट मैंने चालू किया। समझ रहा है? स्टार्ट ग्रोइंग, स्टार्ट इंप्रूविंग। गलतियां समझी, इंप्रूव करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। यस नो? So let's play a game. Let's do something extra. Right? Game बहुत simple है. These are some points. हाँ, एक click बस. These are some points. और game ऐसा है कि will pick up points. Okay? I pick up, you pick up. I pick up, you pick up. जो भी last का point pick करेगा वो हारेगा. Tough game, easy game. Tough game, easy game. 10 का 50. 10 रुपए तुम देना, हारे तो मैं हारा तो 50 दूंगा। हेलो, आनंद मिला गया हो? मेरे स्टूडेंट ने उधर लगाया था, 1600 रुपए कमाए थे एक दिन में। मैं बोला 800 रुपए मेरे को दे, चल दिए नहीं थे उसे। मैं जितना बोल रहा एक भी ब्लफ नहीं, ठीक है? लड़की थी ऊपर से, वो भी सिंधी थी, पूर्वा मट्टा नहीं, कोई पहचानता है? नहीं, ठीक है? तो गेम एकदम सिंपल है। एक कॉइन में उठाऊंगा, एक कहां पे, जो लास्ट में उठाएगा हारेगा। यस सुनो? फिर गेम में मजा है क्या? गेम में थोड़ा ट्विस्ट मारते हैं। अगर मेरा टर्न है तो आई कैन पिक 1 2 3। अगर आपका टर्न है तो यू कैन पिक 1 2 एंड अब जो लास्ट का कॉइन उठाएगा वो हारेगा। हेलो, यस नो? क्या बात है। सो मैम, आपको ना सर्कल पे क्लिक करना है तो इट गेट्स डार्क। क्या समझा? पीपीटी अच्छा बनाया है ना? काम अपने काम बोलना चाहिए। यस नो? ठीक है। सो मैम स्टार्ट अगेन पे जाएंगे। ओके, सारा पीपीटी में होता है भैया, पावर पॉइंट, एक्सेल, बहुत पावरफुल टूल्स। मैं वेस्ट करो मत छपरी रील्स में अपनी जिंदगी। एक टाइम फिक्स कर देगा, ये दिन का ये टाइम सिर्फ 2 घंटा है। एक तो मैं सिलेबस कवर करूंगा या तो स्किल ग्रो करूंगा, बाकी टाइम दोस्तों के साथ दिखाना। फिर कैन बी अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, और बिफोर लंच और पोस्ट कॉलेज, जहां पे तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे किसी से। और दोस्तों को उस समय दूर ढकलने की क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं भैया ये 2 घंटा मेरा है। फिर बीट एनी टाइम, फिर बीट लेट नाइट 10 to 12, रात को 10 से 12, कुछ भी चलता है। दोपहर को कॉलेज में 12 से 2 एक लेक्चर बंद करके। मैंने नहीं बोला, हेलो, मैंने नहीं बोला। हेलो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, फाइंड आउट योर ओन वेज। यस नो? कौन खेलना चाहेगा गेम में? किसको लगता है तुम्हारी बुद्धि चलती है, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल अच्छे हैं? बहुत हाई-फाई गेम, ओके गेम? हाई-फाई गेम, ओके गेम?
कौन खेल, आप खेलना चाहोगे मैम? 10 का 50। राइट, खेलना चाहोगे? Okay, so who would start the game? Will you start or shall I start? You start. You start. 1 coin. 2 coins. 2. Ma'am, you need to choose 2. Okay. 1 coin. My choice is 1. 1. I also go 1. 2. I go 1. 1. I go 2. रुक जाओ, हाँ मैडम। 1. I go 3. 3. Tell the madam how many coins will I pick? अबे 2 pick करूँगा तो मैं हारूंगा ना बच्चे। How many pick? 10 रुपया। कौन खेलना चाहे? कौन खेलना चाहे? I bet एक भी नहीं जीतने वाला है। औकात निकाल रहा हूँ, फंडामेंटल कमजोर है तुम्हारे। कौन जीतना चाहे? चलो। अब भाई दोस्त लेवल पे बात कर रहा हूँ, कोई तुमको लग रहा है कि मैं बहुत हाई फाई आदमी हूँ ऐसे, तुम्हारे लेवल पे आके बात, इसलिए हिंदी इंग्लिश पे शिफ्ट हो गया। ये सुनो, चलो कौन खेलना चाहे? एनीवन? लगता है सर अब मैं हाथ स्टार्ट अगेन पे ठीक कर। एनीवन? आप 10 का 50। हाँ, आप शुरू करिए। मैं 1 2 3 Might be 3. 2. 2. इसने 1 चूज किया है। मैं इनको बोलो मैं कितना चूज करने वाला हूँ। 3 चूज कर लेगा। चल दिखा दे। कौन खेलना चाहेगा? मैम स्टार्ट अगेन। हाँ, आप खेलना चाहोगे मैम? खेला पहले? नो? हाँ, बोलिए आप या मैं? मैं 1। रुक जाओ। कितने लोगों को लगता है ये जीतने वाली है? बोलो, आपको लग रहा है वो जीतेगी? आपको लग रहा है वो जीतेगी? बुरी तरह हारने वाली। I tell you, गेम जब शुरू हुआ उसी समय सेट हो चुका था वो हारने वाली। अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हैं ना, तो लाइफ के गेम में आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। रेस्ट सिर्फ हारने में, आप कुछ भी खेलो। मैं बता दूंगा आप हारने वाला। समझना नहीं समझना है? लाइफ में बहुत सी बार हम पहले ही हार चुके रहते बड़े गेम में। So do not let yourself go on downhill by not performing well. काम करना है, फंडामेंटल्स अच्छे रखने। Yes, no? Yes. Yes, no? Yes. Right? मैम, किसका टर्न है? हाँ, खेलो। अच्छा मेरा है? I'll choose 1. 1. 2. 1. 2. बोलो ना इसको मैं कितना चूज करने वाला हूँ? हाँ? चलो अब मी वर्सेस यू। हाँ? क्या लगता है कौन जीतेंगे? आप सब मिलके या मैं? अगर मैं जीता तो मेरी बोली हुई बातें फॉलो होंगी। यस नो? राइट? कितने लोग मानते हैं बहुत हाई फाई चीज है, बहुत इजी चीज है? अगर आप टेक्निकली परफेक्ट करते हो ना, you beat the system. हमारी आदत लगी है कि हम थ्योरी को बिल्कुल ही भाव नहीं देते हैं।
फंडामेंटल्स आर दी पैरामाउंट। लोगों ने गलतियां करके सीख के उसको थ्योरी बनाया है। सो टेक्निकल थ्योरी हो या दिस इज एन एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक है, जो कैट सीटी बैंकिंग जो बड़े एग्जाम्स हैं, आप अगर सीनेट करने जा रहे हो, कोई भी जगह जा रहे हो तो एप्टीट्यूड एग्जाम आती है, उसका एक छोटा सा फंडामेंटल बता रहा हूं। सो मी वर्सेस ऑल ऑफ यू, यस और नो? कि नहीं सर? सर मेरे को लगता है मैं जीतूंगा आपसे। कौन है? एनीवन? आपको लग रहा है सर? कैन आई हैव योर नेम प्लीज? एफआस खाटी। हां, एफआस खाटी। एफआस जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। तो चलिए बताओ 10 का 50 10 का 100 10 का 50, मतलब तू 10 देगा मैं 50 दूंगा, तू हारा तो 10 ऐसे लूंगा नहीं, पर नकली नकली दे रहा। नकली में तो बोलता ना 10 का 1000 क्या साला डरे हैं जिंदगी में। नकली तो 1000 का लाख ले रहे तू, ऐसा ना डरने का किसी के राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, इसलिए दो वर्ड्स थोड़े से कवर है, ठीक है ना? राइट। एम आई मेकिंग सेंस? So I'm not able to recollect your name again. Efas ji, would you start the game or shall I start the game? You start the game. ये हारने वाला है। ये हारने वाला है। किसी को लगाना है 10 का 100? ये हारने वाला, इस पे अपन बैटिंग करेंगे। गेम पे तो हो गया, अब जो हारेगा जीतेगा उसमें भी बैटिंग। हेलो एनीवे चलो राइट या ओके स्टार्ट। 2 choose 3 1 choose 2 choose 2 1 choose 3 2 choose 2 उन्हें बोलो भाई कितना चूज करने वाला हो, बोलो। मैंने ठीक है वो चूज करूंगा मैं। तू चूज कर रहा है मेरे को। हेलो कितने लोग मानते हैं बहुत इजीली हम बेवकूफ बन सकते हैं सिस्टम में? यस नो? सो अगर आपको स्मार्ट बनना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके थ्योरी सबसे पहले पॉज करने पड़ते हैं दोस्तों। आपके साथ कैसे गेम किए जाते देखना चाहोगे? यस नो? एक गेम खेलना या मैं दूसरी साइड पे जाऊं? अच्छा भाई मैं बोर कर रहा हूं कि मजा आ रहा है? राइट। मैं पहले प्रॉमिस किया था यू नॉट गोना गेट योर टाइम वेस्टेड, पर मैं पसंद करूंगा ये 2 घंटे में कुछ नहीं होना है। 25% थ्योरी फिनिश हो जानी चाहिए। 75% टाइम इनकम आता करना है, कंपटीशन में जाना है, बिजनेस प्लान। अरे एक्सपोज जो होते हैं ना, इंडस्ट्रियल एक्सपोज जाके देखो, वो एक्सपो देखने में आधे बिजनेसमैन हो जाते हैं। अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, काय को जॉब करना है, अगर मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ तो। स्किल इंडिया में गवर्नमेंट पैसा देता है अपने को बिजनेस शुरू करने का। वो पता कब रहेगा? जब पढ़ूंगा मैं थोड़ा सा। पढ़ूंगा कब? जब मेरी क्या अच्छी होंगी थियरी नहीं, पढ़ने के लिए क्या अच्छा हो? थियरी अच्छा होना चाहिए ना ना ना, क्या अच्छा होना चाहिए? हाँ वो क्या अच्छी, ग्रामर अच्छा होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट वो क्या बिजनेस तुम। हेलो इट्स बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया मैंने। Become a 500 words vocab master in a day। एक दिन में 500 वर्ड्स का मास्टर करो। अगर आप 2000 वर्ड्स का प्रोडक्ट लर्न करते हो, लेट्स से अगर आप नैना भी लेते हो, यू आर GRE, TOEFL, IELTS, SAT, ऑल ग्लोबल लेवल एग्जाम्स के लिए रेडी। रीडिंग पैरामाउंट है। यस नो? जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, आई विल गेट बैक टू यू। बट आ जाते हैं, हाँ ये गेम नहीं, मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हारे साथ, अगर आपका नॉलेज कमजोर है तो कैसे तुम्हारी वाट लगाई जाती। इसलिए आपके क्या अच्छे होने चाहिए? सबसे पहली चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्या होगी? आपका क्या अच्छा होना चाहिए? अरे जमनी है, क्या बोले थे प्रिंसिपल सर? यू हैव टू बी एक्टिव और प्रोएक्टिव। तो आपकी क्या अच्छी होनी चाहिए अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है? तो पहली चीज आपका टेक्निकल नॉलेज सबसे पॉश करो।
वो भी बहुत बड़े टाइम में कि बहुत कम टाइम में? उसका सॉल्यूशन भी दिया है। कितना घंटा रोज का देना है यूट्यूब के लिए? 1.5 से 2 घंटा दे देने का। वो टाइम ना दोस्त, ना माँ, ना पापा, ना भाई, ना बहन, ना फलाना, ना दिन का। आप और आपकी पढ़ाई, आप और आपकी, मैंने फायदे उठाए। सिंपल भाषा में कैलकुलेशन दे रहा हूं। अगर लाख लोग भी, कितने, पूरे इंडिया में लाख लोग मेरा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो ले लेंगे? यस नो? राइट, ले लेंगे। 700 इंटू लाख, साल का 7 करोड़ बहुत हो गया। पैसा गिरेगा ना। हेलो, ये मैं खाब रियलिटी में होते हुए क्यों देख सकता हूँ? 7 करोड़ इज अ स्मॉल सम और ह्यूज सम? ह्यूज सम रियलिटी में ला सकता हूँ सही ढंग से? यस नो? 4 साल लगे मुझे इस स्टेज पे लाना। सिंसियर एफर्ट। इनकी भी एफर्ट्स है। राहुल सर मेरे असिस्टेंट है। आई टीच फॉर कैट सीटी बैंकिंग। खत्म करने के पहले एक और चीज बताऊंगा, बट डू सब्सक्राइब टू दिस एंड फटाफट गो। गाउठी स्किल है जो हर एक को, वो क्या सबकी अच्छी होनी चाहिए? यस नो? व्हाई डू यू वेट? रीडिंग सबका अच्छा होना चाहिए। व्हाई डू यू वेट फॉर दैट? मेक इट फास्ट। डोंकी चीजों को फास्ट खत्म करना। थ्योरी पढ़ना ये डोंकी चीज है, फास्ट खत्म करना है उसको। थ्योरी डोंकी, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना क्वालिटी। सो क्वालिटी पे कब पहुंचोगे? जब डोंकी काम को खत्म कर पाओगे, क्योंकि आपको पहचान क्वालिटी काम से मिलती है, डोंकी काम से। आपने थ्योरी खत्म की, कोई वैल्यू देगा? पर आपने थ्योरी खत्म करके आप प्रोग्रामिंग में प्रो हो गए, अब लोग वैल्यू देंगे। पर वो करने के लिए आपको पहले क्या खत्म करना जरूरी है? और हम थ्योरी को इतना ड्रैग कर देते, सॉरी, रिड्यूस इट, देन इंप्लीमेंट इट, और फिर फायदे उठाओ। तो अगर जलगांव का आदमी बैठा है और इंडिया लेवल का प्रोडक्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, साल का 7 करोड़ का मैं सिर्फ हालिंग रूलिंग पैसा कमाई, इस पे मैं खाप देख सकता हूं। और वो शायद रियलिटी में भी 2 साल में, 1 दिन में नहीं होगा। टाइम देना पड़ता है दोस्तों चीजों को बनने के लिए। यस नो? आपको भी खुद को ग्रूम करने के लिए टाइम देना है। हैप्पी टू सी आप इतना अच्छा मेहनत करते हो। सिर्फ मेहनत पे नहीं, अभी उधर भी 2 लोगों के हाथ ऊपर थे जब मैंने बोला कितने लोगों ने 2 बार रिवाइज करके गए थे। कैन आई सी हैंड्स रेज? जो लोगों ने, मैम अब ये 3 लोग नहीं चाहिए मुझे। सर मैम 50% से ज्यादा जनता का 2 बार रिवीजन होकर टेस्ट होगा। दूसरे गधाबंदी करने जा रहे भाई, जा तू गटर में। पहले किसको सुधारना है और उसके लिए सेल्फिश हो जाना। आई मीन, एम आई मेकिंग सेंस? सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। देयर आर सर्टेन हैक्स जिससे आप बहुत स्टाइल चेंज करते हो। मैंने बहुत कॉन्शियसली मेरी हर एक चीज, मेरा हर एक डायलॉग ट्राइड एंड टेस्टेड है। किसी को भी मेरी एक भी बात बुरी नहीं लगने वाली। इट्स सो प्रिसाइजली प्लान्ड। वो गलतियां मेरी शुरुआत वाले सेशन देखने थे, मेरे को कितने गंदे होते थे। गलतियां की सीखी, गलतियां की सीखी, गलतियां की सीखी, अब बेटर 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 बेटर। फिर आज का एजेंडा अलग था, पर जब सर ने, प्रिंसिपल सर ने बोला ना, तो मैंने बोला यार चल थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड विद द अर्लियर साइड, आई वुड हैव गॉन इन दैट डायरेक्शन। बोला नहीं ठीक है, चलो इसको अलग फ्लेवर देते। इतना रेडी हो चुका हूं, एक दिन की जर्नी नहीं है। It's a journey you will have to live. Every day you need to stop and give yourself time to practically explore. समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? Now go back to the slide. Okay, ठीक। मार्केट में एक स्कीम आया है, थोड़ा सा अगर आपके मम्मी डैडी को आप पूछोगे तो पता चलेगा। आपको क्या करना है, 1.5 लाख रुपया हर साल भरना है, 12 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1.5 लाख रुपया, right? 1.5 lakhs rupees every year for 12 years, right? Then 1 year is a blank year, क्या आपको कुछ नहीं करना, right? Next year मतलब 13th year के बाद से they will give you back every year 1.5 lakh rupees for 12 years. मतलब आपने 12 साल दिया, हेलो, फिर उन्होंने 13वें साल में कुछ नहीं किया, 14 साल से उन्होंने हर साल 1.5 लाख रुपए आपको क्या किए, रिटर्न दिए। तो तुमने जितना लगाया आपको क्या आ गया, रिटर्न आ गया। यस और नो?
और 25 से साल में आपको ऊपर से 25 लाख एक्स्ट्रा। हाउ इज दिस स्कीम? करोगे ऐसे? ये चल रहा है, मैंने बैंक का नाम हटा दिया है वहां से, ये सारे जो ब्लू करे हुए ना वो बैंक के, ये अभी मार्केट में चल रहा है प्रोडक्ट। हाँ, सो बैंक के एजेंट आते हैं तुम्हारे मॉम डैड के पास, देखो सर तुम्हारा लड़का भी हुआ है ना, तो अभी तुम 12 साल के लिए भरो, फिर वो जब 15 साल का होगा तो हर साल 1.5 लाख मिलेगा, तो उसका एजुकेशन निकल जाएगा। आइडिया तो क्या, प्लान कैसा है, अच्छा बुरा है। और जब वो 25 साल का होगा, शादी लायक होगा और 25 लाख होगा, उसी पैसे में उसकी क्या करा देना। हाउ इज द प्लान? यस और नो? मैम, ऐसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को आप घर पे चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? चिवड़ा अरे बस आई प्लान। यस नो? यस नो? अच्छा प्लान है ना? तुमको दिल से चू बनाया जा रहा है। हाँ, अरे भाई हेलो यार, डिटेल नहीं होना है अपने को। हाँ, आपको पूरे टाइम जोन के बाद 30 साल के बाद, वो तो 25 का है, ये 30 साल का कैलकुलेशन है, 30 साल के बाद आपको 98 लाख रुपीस वो देंगे। कितना देंगे? कैसा स्कीम? मैं तो 25 का बताया तुमको, इसमें लिखा है पर एनम फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, अगले 30 साल के लिए वो 2,68,000 आपको हर साल देंगे, और वो खत्म होने के बाद टोटल जो पैसा आपके पास मिलेगा उनसे वो 98 लाख रुपीस का मिलेगा। कैसा है प्लान? 1.2, 1.5, 12 साल के लिए तो 18 लाख लगाया, और पूरा जब तक वो मेरा पॉलिसी चल रहा है तब तक मेरे को कितना दे रहे? टोटल 98 लाख दे रहे। हाउ इज द पॉलिसी, गुड और बैड? भयंकर बैड। तुमको पूरे दिल से क्या बनाया जा रहा है, और पब्लिक बनता है, इंजीनियर जैसे बन रहे हैं, तो सोचो जो लिखे पढ़े नहीं है वो तो कैसे बनते हैं। समझ रहे हैं? क्या गड़बड़ है? प्लान तो सुनने में सब कुछ अच्छा है, गड़बड़ किधर है? एनीवन? इसको समझ रहा है क्या गलती है इसमें, ये प्लान में क्या गड़बड़ है जो लोगों को नहीं समझती? हाँ, बोलो बोलो। इंटरेस्ट थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या फंडा बोलना चाह रहे हैं। सही हो? सर, अगर हमने बैंक में पैसे रखे तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है। कर रहे हैं। सो मैंने उसको बोला भाई इसका मैथ्स का फॉर्मूला है, इसका काय का फॉर्मूला है, इस फिनोमेना का मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नॉलेज होगा वो फॉर्मूला चला। मैंने बोला तू 4.5% ही ब्याज देना, एफडी में रखे तो कितना मिलता है? 7.5। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में सही ढंग से लगाए तो 12%। सही ढंग से, आगे इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेलो समझ रहा है नहीं समझ रहा? अगर मैं 12% भी पकड़ूं ना, तो ये जो पैसा है 1.5 लाख वाला वो बन जाएगा 12 करोड़। तुमको दे रहा हूं 98 लाख, तुम उसको चूड़ा चकली करंजा खिला रहे Pure because you have not worked on your what? Fundamentals. कितने लोग मानते हैं सही है गलत है? आपको चाहिए इसका एक्सेल शीट, मैंने पीडी में नहीं डाला, मेरे लैपटॉप में है, मैं आपको एक्सेल पे कैलकुलेट भी दिखा दूंगा सारा कि कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। नंबर्स लेवल आए, यस नो? फिर मैंने बोला उसको, मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे को समझा रहा था भाई 4.5% दे। हाँ ना सर, कौन सी बैंक इससे ज्यादा परसेंटेज देगी? मेरे को क्या कुछ बनाना है? ये सुनो, एजुकेशन का और एक बड़ा फायदा है कि हम ऐसे मगरमच्छों से बच सकते हैं जो अपने को पता होने से पहले अपने साथ गेम करते हैं। तुम्हारे गेम खेल रहे थे ना अपन, तुमको पता होने से पहले तुम्हारे साथ में क्या कर चुका था? गेम कर चुका था, तुम्हें पता ही नहीं, तुम हारने वाले थे। और ऐसे मगरमच्छ बहुत बैठे हैं सिस्टम में जो आपको पता होने से पहले तुम्हारे साथ क्या कर देते हैं। अगर वैसों से बचना भी है ना दोस्तों, तो आपको फंडामेंटली अपने आप को क्या करना है?
और ऐसे लेजी रह के तो बिल्कुल नहीं होगा। नेट समरी 25% टाइम में हमने क्या खत्म कर देना अपना, राइट? थियरी खत्म करना है। 75% टाइम में स्किल्स होंगे, उसमें पहली स्किल्स इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है बट यस यूज इट, इट्स ऑसम फैक्ट, राइट? दूसरा आपका एप्टीट्यूड अच्छा करना, एग्जाम्स में कैट सीईटी बैंकिंग का जो मैथ्स पार्ट होता है वो अच्छा कर लेना है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीआरई टोफेल आईएलटीएस आपको अगले करियर के लिए जाना है वो रेडी हो जाए। ये सारे इनके मैथ्स आपके कॉमन सेंस को बेटर कर देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग। उसके अलावा टेक्निकल स्किल्स क्या क्या जोड़ सकते हो और प्रैक्टिकल स्किल्स क्या क्या जोड़ सकते हो। ये सेकेंड ईयर तक का फिलॉसफी। थर्ड ईयर में गो फॉर किल, नाउ नेशनल कॉम्पिटिशंस। फिलॉसफी 25% टाइम थियरी खत्म, सर को दिखा देने का, राइट? ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ये किया है, ये किया है, ये स्किल्स आ गई है, सर ये लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। यू वुड सरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कर रहे हो आपको 5-5 करोड़ रुपए तक के फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ूंगा तो गवर्नमेंट क्या कर रही है तुम्हारे लिए पता ही नहीं चलेगा। और उसका फायदा जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो अपने आप को होशियार कर लेते हैं, हाँ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो स्कीम्स कहां से पता चलेगी? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना है और आपकी रीडिंग स्किल्स को बहुत पॉश करना है, एप्टीट्यूड स्किल्स को अच्छा कर लेना है। दैट्स द मिनिमम व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स। सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मतलब 4th सेमेस्टर से फिर अब गो फॉर किल, फंडामेंटली स्ट्रांग हो गए, थ्योरी खत्म करने का, कॉम्पिटिशंस, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्सपोज, पेपर प्रेजेंटेशन। अरे जाओ ना, टीडीए दे रहे, शिकागो के पेपर प्रेजेंटेशन में कॉम्पीट करके आए। किसने बोला मुंबई जाना है? सर एक बात बताऊं, अगर आप उस इवेंट में जा रहे हो ना, यू आर टॉप ऑफ द टाउन। 10 लाख 15 लाख बहुत छोटी चीज हो जाती है जिंदगी में तुम्हारी। आपका नॉलेज ही आपको पैसा कमा के देती है, आपका नेटवर्क, आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो अगले लेवल पे सोच रहे हैं। दे आर नॉट डोंकी, सो डोंट बी अ डोंकी इंजीनियर। यस नो? कैन यू डू इट? इफ यू वांट, आई हैव अ फॉलो प्लान, एक चार्ट शीट बनाएंगे। आपने अगर वो चार्ट शीट को फॉलो कर रहे हो तो हम एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करेंगे। यस नो? एनी क्वेश्चन? Session here. How was the session?